کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کو بالکل کٹ ٹو کٹ رکھنا چاہیے، اور اس وجہ سے کیونکہ وہاں پہ لوگوں کی جانیں سٹیک پہ لگی ہوئی ہیں. ہم اپنے بلڈ پریشر اس لیے ہائی کر رہے ہیں اسکانی بھائی کہ ہمارے بزرگوں کی بھی جانیں سٹیک پہ لگی ہیں اور لگی تھیں، اور ان کو بھی ہم لوگوں نے یہ چیزیں دیکھی ہیں. وی آر لیونگ دیٹ لائف. ٹھیک ہے، کیونکہ جب تک کوئی بھی شخص ہمارے پاؤں کا جوتا نہیں پہنے گا اس کو نہیں پتا چلے گا کہ ہمارے پیر صاحب نوں انگریزی سمجھ نہیں آتی، انہوں نے دسو کہ کیڑی لائف رہ رہے ہیں، کیڑی زندگی گزارن رہے ہیں. آ جاتے ہیں. ابھی ان کی کال آئی ہے. تو پیر صاحب کو تو ماشاءاللہ سمجھ سب آتی ہے، ایسی بات نہیں ہے کوئی. آ گئے جی معذرت چاہتا ہوں، مجھے کال آ گئی تھی. اچھا میں آپ سے جوئیے صاحب ایک منٹ. جی سر. پیر صاحب میرا خیال ہے پیر صاحب کی زبان انگریزی نہیں ہے، انہوں نے بہت گھٹ سمجھ آتی ہے. انہوں نے زیادہ نا اردو ہر جملہ اردو چ کہو تو زیادہ بہتر. پیر صاحب پوچھو بشک اگر سمجھ آتی پھر ٹھیک ہے. پیر صاحب اگر میری کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو مجھے بتائیں، میں معذرت چاہتا ہوں. جی پیر صاحب سمجھ آندی ہے گال سٹو. اچھا ٹھیک ہے. میں دیکھیں اسکانی صاحب، بات یہ نہیں ہے کہ سیدھی اسٹریٹ ایک بات ہے کہ ایسے منافق لوگ جو لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں اور قدم قدم پر لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں اور ایسے عقیدے بنائے ہوئے ہیں جو قرآن و حدیث کے ساتھ منسوب کیے جاتے ہیں، اور ان لوگوں نے ایسے قانون بنائے ہیں جو اپنے لیے اور تو دوسروں کے لیے اور. میں مانتا ہوں ہمیں آپ نے جیسے خود بھی سٹیٹمنٹ دی کہ تانوں کون پوچھتا ہے، آپ لوگوں کو کون پوچھ رہا ہے، کیوں چیخ رہے ہو. یہ تو غلط بات ہے نا اسکانی بھائی. وی آر لیونگ دیٹ لائف. ٹھیک ہے. اور گستاخی، اور ایسے وہ لوگ ہیں جو عیسائی ہیں، مور دین 5000 پیپل، 5000 سے زیادہ لوگ جیلوں میں بند ہیں، جس میں سے 2000 سے زیادہ صرف عیسائی ہیں. میں انسانیت کی خاطر اگر میں آواز اٹھا رہا ہوں اور بات کر رہا ہوں تو آپ مجھے اس بنیاد پہ پرکھو گے کہ میں قادیانی ہوں، اور آپ مجھے اس وجہ سے جواب نہیں دو گے کہ میرا تعلق قادیانی جماعت سے ہے. یہ کہاں کا اصول ہے؟ میں نے کوئی غلط سوال کیا ہے تو مجھے بتا دیں. آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے سوالات اس لحاظ سے کیوں غلط ہے، آپ مجھے بتائیں. جی بہت اچھے. بات یہ ہے کہ جہاں ہو شرعی مسئلہ وہاں آپ کا کوئی حصہ نہیں ہے، کیونکہ آپ شریعت کے حصے نہیں ہیں. اس لیے آپ سے شرعی مسائل میں نہ دخل اندازی برداشت کی جائے گی اور نہ ہی آپ کے مشوروں پر غور کیا جائے گا، کیونکہ آپ شریعت کا حصہ نہیں ہے. ایک بات تو یہ. دوسری بات، ملک کے اندر جو کچھ بد امنی ہے اور جو پریشانیاں آپ کو ہیں وہ تو آپ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ اس ملک کے باشندے ہیں اور وہ اپنے حق کے لیے گفتگو کر سکتے ہیں. آپ پر اگر زیادتی ہے اس پہ گفتگو کر سکتے ہیں، کسی اور پر زیادتی ہو رہی ہے اس پہ بھی گفتگو کر سکتے ہیں، اس کا تو حق ہے، لیکن شرعی مسئلے میں نہیں. یعنی دیکھیں، جان مال کی تحفظ وہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے، وہاں قانون ہے، پولیس ہے، عدلیہ ہے، صحت کا نظام ہے، وہ سارا کچھ بنایا ہوا ہے. ان سے آپ مستفید ہو سکتے ہیں، ہر آدمی، قانون سے، پولیس سے، عدلیہ سے، اور جو صحت کے جو نظام ہے ان سے آپ مستفید ہو سکتے ہیں. لیکن عوام کا کردار جو ہے وہ قانون کی پابندی بھی ہے، ایک دوسرے سے مدد کرنا بھی ہے، غلط کاموں کے خلاف آواز بھی اٹھانا ہے. اسی طرح کوئی جو ہے ہنگامی حالت ہو، فوری رد عمل، زخمی ہے اسپتالوں کو پہنچانا، یہ یعنی دونوں مل کے اپنے ملک میں وہ ایک دوسرے کے جان کو بھی بچاتے ہیں، مال کو بھی بچاتے ہیں، اور بھی پریشانی ہے ان کو دونوں مل کر وہ کام کر رہے ہیں. اس میں آپ کا حق ہے جس ملک کے آپ باشندے ہیں. جی اچھا چلیں، جزاک اللہ، بہت شکریہ. میری نالج کے لیے دیکھیں، میں آپ کی نظر میں شریعتاً کوئی حق نہیں رکھتا، میں آپ کی شریعت کو سمجھنا چاہتا ہوں. مجھے یہ بتائیں گستاخی کیا ہوتی ہے؟
मैंने बता दिया था, पहले भी बता दिया था आपको कि जी गुस्ताखी नहीं, क्या मुझे है। नहीं पता। मैंने बस छोटा शॉर्ट सा मुझे एक तारीफ बता दे, गुस्ताखी क्या होती है। मैंने आपके सामने बात की थी, आप क्यों कह रहे हैं कि नहीं बताया? नहीं, मैंने जितना रिकॉर्ड किया है उसी टाइम आया था, मैंने साथ ही रिकॉर्डिंग लगा ली थी, भैया लेकिन साहब वो मैंने सवाल कर लें जरा, वो जो वालदैन वाला था वो करें नहीं नहीं, थोड़ा मैं सा। करता हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, वो कर लेते हैं। मुझे गुस्ताखी का सर मुझे थोड़ा सा बता दें कि गुस्ताखी, देखें मैं ये समझना चाहता हूँ, क्योंकि कोई भी बंदा कहीं पे भी किसी के ऊपर इल्जाम लगाता है, वो बाद में ये कह देता है ओह ये तो स्लिप ऑफ टंग है। हाँ जी, दिफा कर रहा था तो गलती से ऐसे कलमात निकल गए, गलती से ऐसे कलमात निकल गए, हालांकि इंटेंशनली उसने नहीं निकाले, जोया लेकिन साहब ये फ्लो में जोया निकल गए साहब हैं। जोया साहब जी एक सर। ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤਲਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ? मैं ਤੁਹਾਡੇ मैं ਹਾਂ आता हूँ ਅਗਰ भाईजान ਤੁਹਾਡਾ जी। ਇਸਲਾਮੀ अच्छा ਸ਼ਰੀਅਤ मुनासिब ਤਲਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ सवाल ਹੈ, है। ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ जी ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਤੇ नहीं नहीं, ਲਾਗੂ वो ਹੁੰਦੀ ਹੈ? शरीयत लगाने के लिए है, शरीयत देने के लिए नहीं है। हाँ वो उनका मतलब ये है, शरीयत लगा लो, वो मतलब मरम की तरह शरीयत लगा लो, लेकिन किसी को देनी नहीं है शरीयत। ना 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 ना, तौबा करो, वो हमसे छिन जाएगी। जी अस्कारी भाई, मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे कि गुस्ताखी आमदन क्या होती है? क्या आमदन गुस्ताखी होती है या नहीं होती, या कैसी गुस्ताखी गुस्ताखी होती है, ये बताएं। जी, गुस्ताखी मैंने पहले भी बताया है, शायद इसी ब्रोड पे या कोई और आप लोगों का ब्रोड है वहां पे, और आप मौजूद भी थे, लेकिन फिर बता देता हूं। जी जी। गुस्ताखी जानबूझकर आप हद से तजावज कर जाए, यानी तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल करें किसी भी मुहतरम शख्सियत के लिए, उसका मजाक उड़ाएं जानबूझकर, या ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें जो नाज़ेबा हों। यह है गुस्ताखी। अस्कानी भाई, आपने माशाल्लाह एक अच्छी जिंदगी गुजारी है, मैच्योर है। मुझे ये बताइए कि कभी आपने जानबूझकर या गलती से भी अपने वालिद साहब के लिए कभी कोई गलत अल्फाज या गाली निकाली है? नहीं, कभी नहीं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, बाकी अंबिया कराम के लिए और अल्लाह ताला की जात के लिए आपने ये असूल जो बनाया, चले ठीक है, मैं इस बात की भी आप वो छोड़ दें, मैं इसको भी जाने देता हूँ। मुझे ये बताएं, ये जो गुस्ताखी की आपने तारीफ बताई है, ये कहीं से कोई हवाला मिल सकता है आपकी किसी भी लिटरेचर से? नहीं, अगर आप कहाँ से इसको लिया नहीं, आपने ये तारीफ? देखें, अगर आप इसको नहीं मानते तो आप अपनी तारीफ बता दीजिए, कोई बात नहीं। सर मैं तो मुसलमान ही नहीं हूँ, हाँ ठीक है, मेरे तो से क्या तारीफ मुसलमान लेंगे? मैं तो उस खाते में नहीं हूँ, मैं तो उस जमरे में नहीं आता। मैं तो आपकी शरीयत समझ रहा हूँ, शायद मैं अट्रैक्ट हो जाऊं और आपकी तरफ माइल हो जाऊं, मुझे तो सीखना है। आप मुझे ये बताइए कि जो गुस्ताखी की तारीफ आपने बताई है कहाँ लिखी है, मुझे उसका हवाला दे दें। नहीं, जी मेरे सर। पास तो कोई हवाला नहीं है, मैं अच्छा, खुलासा ये बता रहा आपकी अपनी खुद की तारीफ है? हूं। हाँ जी जी, 1400 साल में किसी ने, कोई ये कानून बन गए हैं बड़े बड़े, 295C जैसे आपने कवानीन बनाए हैं, और उसकी आपके लिटरेचर से या हदीस से या कुरान से कहीं से ऐसी कोई चीज नहीं मिलती, लेकिन आपने कानून बना लिया। नहीं देखें, गुस्ताखी जो है उसकी तारीफ वो तो कुरान और हदीस में तो नहीं मिलेगी, लेकिन अच्छा। इस्तेज़ा करना, गलत अल्फाज निकालना, इसी को कहते हैं, ये तो मिलती है। नहीं, मुझे इस्लामी देखें, शरीयती और इस्लामी इस्तिलाह के तौर पे किसी के ऊपर इम्पोजमेंट करना और उसको 295 के जुमरे में लेकर आना, उस लिहाज से क्या गुस्ताखी है, उसकी तारीफ आपके किसी लिटरेचर में होगी, मुझे वो चाहिए सर। देखें, आपने कहा गुस्ताखी की क्या तारीफ है, मैंने आपको बता दिया। तारीफें आपको ना कुरान में मिलेंगी ना हदीस में मिलेंगी। नहीं, मैं समझ गया आपकी बात। जी जी जी, अब बात तो अस्कानी करने भाई, दीजिए ना, बात तो करने ठीक है, दीजिए ना। कीजिए कीजिए कीजिए। जी जी, बात करने दीजिए। तारीफें आपको ना कुरान में मिलेंगी ना हदीस में मिलेंगी, बल्कि तारीफें इसलिए हैं कि एक चीज की वजाहत आप करें आम फहम में। अब मिसाल के तौर पर कुरान मजीद में आया कुल अबिल्लाहि व आयातिही आम फहम में शरीयत आती है? आप बात सुनेंगे नहीं?
सर मैं तो एक पॉइंट पे रखना चाह रहा हूँ ना, आप थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो आपकी रहे हैं, मैं मर्जी ये का पॉइंट बताना तो चाह नहीं रहा हूँ। चलेगा ना, आप अपनी नहीं, मैं मर्जी चाह रहा हूँ से कि शरीयत के मुताबिक बात करें, मैं तो शरीयत पे बात कर रहा हूँ ना, मैं शरीयत समझ रहा हूँ, सीख रहा हूँ। मैं तो बता तो रहा हूँ आपको, लेकिन आप सुनना नहीं चाहते। जी सर करें बात। अब आप सुनना नहीं चाहते तो मैं क्या कर जी सकता हूँ। ठीक है, हो सकता है वहां बात आपकी चली जाए, मैं पहले बोल पड़ूं, आप बात करें। मौका नहीं देते आप, मुझे यकीन नहीं है आप पे कि आप मौका देंगे। जी आप सर करें बोलते बात। जाओ, मैं हाँ हाँ करता जाऊंगा। नहीं सर करें, मैं म्यूट लगाता हूँ, करें बात। बहुत शुक्रिया। मैंने आपको बताया कि गुस्ताखी क्या है, मैंने आपको तारीफ बता दी। अब आप कहेंगे मुझे कुरान और हदीस से दिखा दीजिए, कोई तारीफ कुरान और हदीस से नहीं है, तारीफें नाजिल नहीं हुए। कुरान मजीद में ये जरूर आया, कुल बिल्लाहि व आयातिही व रसूलिही, अल्लाह की आयतों के बारे में, अल्लाह के बारे में, अल्लाह के रसूल के बारे में तुम जो है इस्तेहजा करते हो, ये कुफर है। अब इस्तेहजा क्या है? इस्तेहजा गुस्ताखी है, यानी आप ऐसे कलमात इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें बेअदबी का पहलू हो, तौहीन का पहलू हो। यह है किसी ने बेअदबी के, तौहीन के अल्फाज इस्तेमाल किए अल्लाह के बारे में, अल्लाह के कलाम के बारे में, अल्लाह के रसूल के बारे में, या किसी शख्सियत के बारे में, आपने तौहीन कर दी और तंज किया, वो गुस्ताखी कहलाती है भाई। जी बहुत शुक्रिया जी। वहां पे आपने कहा है कि इस्तेहजा जो है वो गुस्ताखी है, और वो गुस्ताखी या इस्तेहजा करने वाला काफिर है। अब मुझे इसकानी भाई ये बता दीजिए कि दो चीजें इस पे मैं पूछूंगा। पहली बात ये पूछूंगा कि क्या वहां पे अल्लाह ताला ने सजा बताई है, ऐसे बंदे को सजा देनी है कि क्या करना है, और उसका सर तन से जुदा करना है, एक चीज। दूसरा सवाल साथ पे ये है कि वहां पे काफिर कहा गया है, अल्लाह ताला ने कहा है कि उसने कुफर किया है, तो यानी कि वो इनकार करने वाला है, वो इन चीजों को, वो जो जिसने गुस्ताखी कर दी वो उसने कुफर कर दिया, यानी कि वो नबियों का इनकार करने वाला है। और उस बंदे का पता चल जाता है कि ये नबियों का इनकार करने वाला है। हो सकता है कि वो अपने आप को मुसलमान कहता हो, लेकिन वो गुस्ताखी करता है। वहां पे अल्लाह ताला ने कहा है कि वो काफिर है। क्या वहां पे सजा है? सजा अल्लाह ताला ने सर तन से जुदा दी है वहां पे, या उनको 295C का कानून बना के उनको टांग दो, या उनको उम्र 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 कैद दे दो? क्या ये चीज वहां पे कुरान पाक में मौजूद है? हाँ बिल्कुल मौजूद है। जी बताइए। एक सेकंड ठहरे, मैं जरा खोल लूं। जी बताइएगा, मैं खोलता हूँ। जी सर। क्या खोलते हैं? आप जो बताने लगे हैं वो मैं खोलूंगा, बताइए। नहीं, मतलब खोल क्या रहे हैं? जो आप बताने लगे हैं, मैंने कहा जो मौजूद है वो बताएं तो, ताकि मैं खोल लूं। कुरान खोलना, उन्होंने कुरान से देखना, कुरान से कुरान खोल रहे हैं। कहीं से भी बता दें, कहीं से भी बता दें। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। देखें, जो अल्लाह और अल्लाह के रानी रसूल, भाई मेरा नहीं ख्याल कि मैं आपसे इसलिए इस तरह बात कर रहा हूं क्योंकि मैं आपको पर्सनली तौर पे पसंद करता हूं, गो कि आप हमारे मुखालिफ हैं, ठीक है। आप एक नपी तुली बात करने वाले हैं, मैं आपसे एक उम्मीद रखता हूं और एक उम्मीद पे बात कर रहा हूं। आपने कहा है कि आप अपना ब्लड प्रेशर क्यों हाई किया हुआ है आपने, आप हमारी सूरत हाल को नहीं समझ सकते। उसकी वजह यह है कि आप एक तर्ज रखते हैं, वो तर्ज जब तक रही तब तक आपको मजलूम नजर नहीं आएगा, ये याद रखिए। अगर आपने वो तर्ज छोड़ी जिसके लिए अल्लाह ताला ने कहा है कि जो अपने आप को मुंह से मुसलमान कहे उसको मुसलमान जानो, हालांकि ईमान ने उसके दिल में झांक कर भी नहीं देखा, उसके लिए तकवा की जरूरत है। तो आपको तकवा करने की मैं इल्तिजा करता हूं। हमारी इन बातों को थोड़ा सा सीरियस लें और तकवा से काम लें, क्योंकि ये आपसे जो अभी आप भाई कर रहे हैं ये लिखा भी जा रहा है। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी जी। बात सुन लीजिए। शरीयत का मामला वो आपका है नहीं, मैंने आपको पहले बता अच्छा दिया। जी, खत्म नबूवत पे बात करें, वो शरीयत का मसला है मेरा आपका।
सुन लीजिए ना, मेरी बात खत्म तो सुन नबूवत पे लीजिए, बात करते हैं, चले शरीयत का मसला है ना फिर। सुन लीजिए ना भाई, आप सुन तो लीजिए। सर शरीयत का मामला आपका नहीं है, जो ये उस था पे आप शरीयत का मामला क्यों नहीं है? आप शरीयत से सजा बता नहीं सके और इसको शरी सजा कह रहे हैं। आप ना मैं कुरान में बता है ऐसा कोई, ना हदीस में है, तो आप इसको शरी सजा के, ये शरीयत का मसला कैसे हो गया? आप दो बातें कर रहे हैं पीर साहब। एक बात बात यह है करें। ना कि ये रसूल पाक राणा सल्लल्लाहु साहब अलैहि गुस्सा ना वसल्लम की करें, तालीम के गुस्सा ना खिलाफ करें, जाते हैं। रसूल गुस्सा पाक ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि खुदा की कसम मेरी बेटी फातिमा भी अगर चोरी करती गुस्सा तो ना इसके भी मेरी हाथ वही सवाल। इसी मेरी बात सुने, हम मैं असकानी साहब से यही अभी अर्ज किया है कि बात तकवा सुन से लो, काम ले, बात कोई ऐसी सुन बात ले नहीं, इंसाफ करेंगे, वो भजन, अच्छे इंसान है, वो इंसाफ करेंगे। शाउटिंग ना करें, सुन लेना भाई। जी 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 जी, ठीक है। बात यह है, ये राणा साहब बड़े कह रहे थे इनको अंग्रेजी नहीं आती है, शाउटिंग देखा अंग्रेजी ओह आती है, वाह, देखो। डोंट अंडर एस्टिमेट। हाँ जी चले जी, बात करें। तो आप निकालें सूरत तौबा, निकालें, ये देख लें। आपका इस्तेज़ा करने की कोशिश की, एक दिन मुझे पता था आप पूछ रहे थे, अब मुझे समझ नहीं है इसकी, इसलिए मैंने कहा था अगर आपको आसानी के लिए कहा था, अगर इंग्लिश एक सिर्फ जुबान है, इसमें और कुछ नहीं है, ये किसी की क्वालिफिकेशन को जज करने के लिए नहीं है। थैंक यू। I don't care what you thinking about me. ओके, डोंट अच्छा, रियली वरी देन, जस्ट so कैरी ऑन, जस्ट कैरी ऑन। सूरत तौबा जी, वला आयत कौन सी है पीर साहब? वला इन सअलतहुम, निकाल लीजिए सूरत तौबा, निकाल लीजिए। चलिए मैं खुद निकाल लेता हूं ताकि आपको नंबर बता दूं। सूरत तौबा कौन सी आयत है ये? सूरत तौबा आयत नंबर है 65। एक और सेकंड है, मैं निकाल लूं, 65 निकाल लेते हैं। सूरह तौबा आयत 65। चालू कर। ओए वो जी इसकानी साहब, इसमें सूरह तौबा आयत 65, और अगर हम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अगर और हम नहीं अगर है, अगर हम नहीं है, ओ और भाई, अगर अगर तुम, हम नहीं है, जी जी, भाईजान, और तुम भी नहीं है, प्लीज प्लीज, तुम जी नहीं जी है। जी, अच्छा, मैंने हमारा आपका ही निशान- निकाला है, मैंने अपना नहीं निकाला तर्जुमा। भजन सुन तो लीजिए, तर्जुमा का मैं बात नहीं कर रहा, जी, ये फतेह मैं मोहम्मद मतन की जलंधरी बात साहब का है। जी जी जी, मैं करें मतन बात। की बात कर रहा हूँ, मतन की बात कर रहा हूँ ना। अच्छा, मैं तर्जुमा पढ़ देता हूँ, फिर आप मतन पढ़ दें, कोई ऐसी बात नहीं, तर्जुमा पढ़ देता हूँ मैं। आप मतन पढ़ सकते हैं थोड़ा? नहीं नहीं, मैं तर्जुमा पढ़ सकता हूँ। मतन पढ़ सकते हैं या नहीं? मेरा सवाल यह है, मैंने नहीं कहा मैं पढ़िए तर्जुमा पढ़ के मतन आपसे सुन लेता हूँ। भाई, मेरा जो सवाल है, आप मतन पढ़ सकते हैं या नहीं? मेरे पास है नहीं है, तर्जुमा है सिर्फ। तो आप निकाल लीजिए जो जिसमें अरबी का मतन हो। मैं इसकी साथ में तशरीह भी उनको कह देता हूँ कि मुझे इसकी तशरीह दे दें, क्या ख्याल भाई है? मेरा जो सवाल है कोई मुश्किल सवाल है? आप सर, नहीं पढ़ सकते कह दीजिए, मुझे नहीं पढ़ सकता, इसमें और कोई लजाजत वाली तो सर बात मैं नहीं। तो कह रहा हूँ, आपने मुझे आयत बताई है, मैं उसका तर्जुमा तो पढ़ूंगा ना अस्कानी भाई। तर्जुमा नहीं, पहले आयत पढ़ लीजिए ना भाई। मेरे पास अब, मैं ठहर जो फिर निकाल लेता हूँ, ठहर से। हाँ प्लीज, अगर नहीं पढ़ सकते साफ कह दीजिए, मैं नहीं पढ़ सकता हूं, मैं इस पे आप पे हंसूंगा नहीं भाई, बहुत ऐसे लोग हैं जो नहीं पढ़ सकते। नहीं, मैं सिर्फ बात ये है, मेरी बात सुने अस्कानी साहब, जी। इधर उधर रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं, मेरा कोई ना कोई गलती पकड़ के उठा के ऐसे ही करेंगे, इस तरह की बात करने की जरूरत नहीं है। तर्जुमा आप अपना पढ़ दें, ठीक है? मुझे मसला यह है कि मुझे मफहूम समझना है आपकी बात का, ये मामला कहीं और लेकर जाने का कोई मकसद नहीं है। अगर आपने पढ़ना है, जैसे भी पढ़ना है आप पढ़ दें, मेरा मकसद ये नहीं है। आपकी गलती अगर होगी तो मैं भी नहीं निकालूंगा। थोड़ी सी बात यह है, नहीं मेरी गलती है, निकाल लीजिए। मैं नहीं निकालूंगा ना, मेरा मकसद नहीं है ये। अच्छा सुन तो लेना, मेरी बात हाँ सुन जी। लेना। जी जी जी, आप नहीं पढ़ सकते कह दीजिए, मैं नहीं पढ़ सकता, मैं खुद पढ़ लूंगा।
नहीं, मैं क्यों ऐसा कहूं कि मैं नहीं पढ़ सकता? ये आपको किसने तो कहा फिर है? पढ़ लीजिए, मैंने पढ़ आपको ये कहा लीजिए। है कि मैं सिर्फ तर्जुमा पढ़ूंगा। मैंने आपने कहा पढ़ना है, मतन आप पढ़ दीजिए, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे पढ़ दें। आप मतन पढ़ लीजिए, तर्जुमा मैं करूंगा। तो आप मतन पढ़ दें, तर्जुमा मैं पढ़ देता हूं। आप दोनों कर दें फिर, ये आयत आपने पेश की है, आप पढ़े। तो फिर यही तो बात है ना भाई, आप पढ़ सकते हैं या नहीं? आयत आपने पेश की, आप पढ़े। देखें, ये बच्चों वाली बात अब अस्कानी भाई आप क्यों बच्चों कर रहे वाली हैं? बात नहीं है, असल बिल्कुल में बच्चों बात वाली यह बात है। है। आप पढ़ा रहे हैं, आप समझा रहे हैं, आप हवाला दे रहे हैं। भाईजान मेरी बात, मैंने बहुत सादा सवाल आपसे किया है, आप कुरान मजीद का ये मतन पढ़ सकते हैं या नहीं? आप पढ़ सकते हैं। यार जा रहे हैं जो पेश कर एक रहा है वो मिनट ठहर पढ़ जाए देगा। भाईजान, एक मिनट। आप पढ़ सकते हैं अपना अस्कानी भाई? अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ सकता हूँ। पढ़िए, पढ़े फिर। मैं आपसे बिस्मिल्लाह पूछ करें। रहा हूँ, आप आपसे पढ़े पूछ सर, रहा हूँ, आप आप पढ़ सकते पढ़िए। हैं, आप पढ़े। नहीं, आप पढ़िए। मैं पढ़ सकता हूं, मैंने नहीं पढ़ना। आप पढ़े, मैं आपने नहीं पढ़ना तो मैं क्यों पढ़ूं आपके सामने? क्योंकि आप पेश कर रहे हैं ना, आपने समझाना है, आपके सामने एक मुद्दा है। आपने मुझसे पूछा है, आपने कहा मैं खोल रहा हूं, तो खोलने का नतीजा ये कि आप उसको पढ़ नहीं सकते। मेरे पास मैंने सिर्फ तर्जुमा निकाला है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, लेकिन तर्जुमा मैं नहीं निकाल लूंगा आयत। भाई, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप भाई, पढ़े, आप पेश कर रहे हैं। भाई आपने मुतालबा किया, मैंने आपको बता दिया, पढ़िए। पढ़ाइए ना, पढ़ आपने नहीं समझाना भी सकते तो कह है, दीजिए, आप पढ़ नहीं सकते। आपने समझाना भी है, आप समझाइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप पढ़ तो हाँ लीजिए, जी, हाँ जी जी, पढ़ आप लीजिए। पढ़ा दीजिए। हाँ बिस्मिल्लाह की पढ़ लीजिए। जी बिस्मिल्लाह करें, आप पढ़ा दीजिए। ये देख ले जोशिया साहब, सिर्फ शोर शराबा, गुस्सा। हालत ये है कि मैं कुरान मजीद को कह रहा हूं कि पढ़िए, आप पढ़ नहीं अब सकते आपने और इसको बता दीजिए। अब आपने इसको जवाब बना लिया। नहीं, आप साफ दिल अच्छा, से कहिए कि दिल मैं बड़ा नहीं पढ़ करें, सकता, पढ़े मैं और पढ़ मुझे लूंगा। समझाएं फिर। आप आप जाके ना कहें मुझे बता दीजिएगा, जो या बहुत शोर मचा रहा था, आयत इसको हाँ, पढ़नी नहीं आती, ये जाके कहिएगा। लेकिन अभी आप मुझे मतन समझा दें, पढ़ के मैं बता दें, उसका तर्जुमा बता मैं दें प्लीज। मैं आपको ये कह रहा हूं कि शोर शराबा तो इतना कि पूरे कोई टिकटॉक के बात सर नहीं, पे लिया हुआ है, इंशाल्लाह लेकिन करेंगे, एक फिर भी आयत नहीं पढ़ करेंगे। सकते। आपको बताएंगे कि अहमदी कुरान कैसे पढ़ता है, इंशाल्लाह ताला। आप पढ़ के सुनाएं, आपने जो पेश आमदी किया है। की ये हालत है, आपको मैं पता पढ़ूंगा नहीं है कि तर्जुमा, क्यों तर्जुमा पढ़ोगे? क्या मतलब? नहीं, आप जाके मेरी बात सुने इसकानी भाई, मैं चाहता हूं कि आप जाके ये डंगा बजाएं मेरा, किसको कुरान नहीं नहीं, पढ़ना। वो तो कोई ऐसी बात नहीं। आपको नहीं आता कह दीजिए, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है और भाई। मैंने तो कहा ही नहीं है कि मुझे नहीं आता। तो पढ़िए, मैं लेकिन आपको क्यों नहीं एक पढ़ते? मौजू दे रहा हूं, आप जाके वो डंगा बजा लीजिएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, वो कर लेंगे, पढ़िए। इस्कानी साहब एक मिनट, आप मुसलमान समझते हैं हमें? नहीं, नहीं समझ तो फिर कुरान आप पढ़े, हमारे वो से एक मिनट, कोई गुस्ताखी बात लगी। नहीं, नहीं 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 नहीं, नहीं, वो आप करने दे क्यों वो। शरीयत में हाथ डाल इट्स रहे हैं कि ओके, मुझे शरीयत शरीयत, को हाँ बता हाँ हाँ, दीजिए? नहीं नहीं नहीं, ठीक है अस्कानी भाई, पढ़िए प्लीज। अब आप जाके कह दीजिएगा कि जोइयो को कुरान नहीं पढ़ना आता। पढ़ना नहीं कहिएगा। आता आपको? पढ़ना नहीं आता मुझे आता है। तो पढ़ो। अस्कानी भाई, फिर वही बात आ जाती है, मैंने आपसे पूछा, आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आता है, मैंने कहा पढ़ के सुनाइए। भाई आप बड़े शोर शराबा कर रहे हैं पूरे टिकटॉक के गोया के, और पता जो नहीं मैंने कौन सा जिस अल्लाह बात पे शोर शराबा कर रहा हूं, मैंने कुरान की, मैंने मेरी बात सुने, कुरान के मतन पे मैं शोर शराबा नहीं कर रहा। तो अल्लाह जिस साहब, बात जब पे शोर आपने शराबा कर रहा हूं उस पे जवाब दीजिए। जो या आप पढ़, हाँ जी। कोई गलती ना कर, ते जे तेरी गलती ना करना मैं थले पा नहीं ऐ दिल लग जाना इशू ना। नहीं नहीं, मेरी बात सुने, अपना भाईजान राणा साहब, और राला जी, इनको जाके कहने दे कि जो ये को कुरान नहीं आता। जी कोई जनाब, ऐसी मुझे बात बुला रहे हैं, सॉरी जो जैसे मुझे बुला रहे हैं। नहीं नहीं, अपने ये भी थल्ले राणा अच्छा, साहब राणा ही ने साहब, अपने sorry, यार। sorry। राणा जी, तुसी थोड़ा गुस्सा पी जाओ, गुस्सा ना करियो। पीर साहब वैसे सारी लाइवों पे जो है ना वो यही चल रहा नहीं नहीं, कर लेने दे उनको। है, वही एक पढ़ता है। मिनट आप ये मैं भला 12 साल में जानता ताड़ा हर बिना भागा हां मैं। हाँ मैनू पता है, मैनू पता है। हाँ जी, हर जगह पे पढ़ेंगे। यही होता है कि जो हवाला पेश कर रहा है वही पढ़ता है, तो पढ़े हैं, अल्लामा दूसरे क्यों नहीं पढ़ रहे? साहब, आपने पूरे टिकटॉक के सर पे लिया हुआ है और एक कुरान मजीद की आयत नहीं पढ़ सकते? दूंगा कोई बंदा जितना टाइम वेस्ट कर रहे हो यार। तल्ले लाओ, तल्ले कोई लाओ। बात नहीं, नहीं, हेलो भाईजान,
जल्दी करो, भाई, कोई भाई, बात नहीं, आप असल ये में कह पीर दें साहब कि को जी भी आयत पता नहीं है पढ़ उस आयत सकता में जी, ही कई ये एक भी एक कादियानी नु आयत नहीं पढ़नी आई। तल्ले शरीयत ला दो, अपनी। आयत में और यार कभी एक मिनट मेरे इनको ये कुछ भाइयों, नहीं खुदा बताया। ना भाईजान खुदा तल्ले ला भाई, दो, एक सेकंड तल्ले ला दो, प्लीज, यही मुझे करो। बात करने दे, मेरी दो बात चार करेगा ना। गालियां भी दे दो चार गालियां भी दे, तल्ले पे तल्ले तल्ले। अस्कानी साहब, मैंने आपसे पहले कहा था कि मौजू अगर आपने इसको वजह बनानी है तो आप बना नहीं, सकते हैं, कोई मसला नहीं। आपने मेरी बात मैं सुने जो, आपसे, आप मौजू से हट रहे हैं। मैं आपने बताता हूँ, आयत पेश की है, मैंने आपसे कहा कि आयत को पढ़ के मुझे समझा दीजिए, उसका मतन पढ़े, उसका तर्जुमा पढ़े और मुझे समझाइए। आपने कहा तुम नहीं पढ़ सकते। मैं जी मैं पढ़ सकता हूं, मैंने नहीं पढ़ना। आपने आयत पेश की, आप पढ़ के मुझे समझाएं। अब सुनिए, अब आप अब समझा सुनिए, नहीं रहे। मैंने फिर आपको कहा कि आप मतन ना पढ़े, आप सुन तर्जुमा लीजिए ना, पढ़ लें। मैंने सुन आपसे तो कहा कि लीजिए। तर्जुमा आपके घर का है, अगर आपको उस पर एतराज है तो जोशिया जो साहब, तर्जुमा आप पढ़, एक सुन तो ले भाईजान। मैंने कहा जो तर्जुमा आपको पसंद है वो पढ़ ले। आपको उसमें भी प्रॉब्लम हो रही है तो ये बता दें कि हाँ आपको उसमें प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा अब मेरी बात सुनिए, देखिए ये चालाकियां, इधर उधर की बातें, अच्छा, इनका चालाकी कोई, मैं कर रहा हूँ। सुन तो लीजिए, अब मेरी बात तो पूरी माशाल्लाह। सुनिए, पूरी मेरी बात सुन लीजिए ना। जी 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 मैंने जी। आकर ये बताया आपको कि क्यों शोर शराबा आप कर रहे हैं। आपने कहा इस मसले पे, मैंने कहा इसमें आपका कोई दखल नहीं है क्योंकि आपका मामला ही नहीं है शरीयत का, आप क्यों बीच में आ रहे हैं। अब आपने, मुसलमानों का कुरान से कोई तल्लक नहीं है इसका। और एक मिनट जरा, हाँ, पीर साहब है तुझे कह रहे शरी मसला नहीं है नाल शरीयत का मसला बना दे। शरा से इसकी सजा सुन तो बताएं, लो, शरीयत से बोलना, शरीयत से सुन इसकी तो लो, सजा बताएं, फिर इसको शरी मसला कहें। अब दो बातें सुने, डबल स्टैंडर्ड कर रहे हैं, डबल स्टैंडर्ड ये ना सुन करें। तो लो, सुन तो लो, सुन तो लो। हमारी भी तो सुनना, तेरा काम है सिर्फ बच्चों को बम बनाना सिखाना। तुझे तलावत नहीं आती ना, तू कराने हुआ पड़ता, जाके वो सिखा। यार ना करे यार, बाबा बुढ़ा बाबा है, फिर नहीं अटैक हो जाएगा, ना करे यार। करते जाओ, करते जाओ। नहीं नहीं, पीर इसकानी साहब साहब मैं बोलिए। पीर साहब मैं बदतमीजी नहीं कर रहा। एक मिनट जरा, पीर साहब मैं बदतमीजी नहीं कर रहा। आप दो चीजें बता रहे हैं, एक कह रहे हैं शरा में इसकी कोई सजा नहीं है, साथ इसको शरी मसला भी कह रहे हैं। आई एम कंफ्यूज। इसका ये बताएं कि ये इंतजामी मसला है या ये शरी मसला है। जब आपसे सजा पूछिए आप कहते सजा नहीं है, फिर कहते पहले, शरीयत में आपका कोई हक नहीं है। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही। अच्छा पहले सुन एक तो जगह लो, पे नहीं। मुझे मौका तो दो ना भाई बात करने का। जोशिया साहब ने पूरे टिकटॉक के अपने सर पे उठाया हुआ अच्छा था। इसकानी साहब एक मिनट, जोशिया नहीं है, जोया है, ठीक है। चलो जोया हो जो भी हो, नहीं, हाँ, जोशिया नहीं पढ़े ना। चलें जोया पढ़ लेते हैं, इसमें क्या है। अब जोया जी ने पूरे सर पे उठाया हुआ है टिकटॉक पे, मुझे उन्होंने उठाया, मुझसे गुफ्तगू की, मैं उनसे अदब से गुफ्तगू कर रहा हूं। मैंने उनको बताया कि ये जो शरई मसला है आपका उससे कोई तल्लक नहीं, आप क्यों शोर शराबा कर रहे हैं, क्योंकि आप मुस्लिम जो है कम्युनिटी का हिस्सा ही नहीं है। अच्छा, इस्लाम के ठेकेदार साहेब भाईजान, नहीं नहीं, आज शरी मसला इस्लाम तो है का नहीं, जो ये आपने शरी ठेका मसला तो उठाया है हुआ नहीं। है, मेरी बात सुनिए। जोशिया साहब मेरी बात तो पूरे होने देना, ये क्या बात है? नहीं बात तो, नहीं 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 नहीं, मेरी बात सुनिए। आप एक बात, आपको पता है आपने ये बात कितनी दफा कर दी है, मैं आगे भी बताऊंगा उससे ना, कोई मेरी फर्क बात नहीं तो, पड़ता, क्योंकि सुन तो इस्लाम लो का ना ठेका आपके पास नहीं है। आपको भाई। आप मुसलमान ही आप हजार मुझे कहो, मुसलमान आप काफिर और काफिर बोलते हैं, आपको बहुत सारे हजार मुसलमान, लाखों मुसलमान आपको काफिर समझते भी हैं। तो आपका आप तो भी ठेका बोलिए नहीं है ना ना इस्लाम का, भाई, आप आपका बोलिए, ठेका तो आप भी नहीं है ना बोलिए इस्लाम का भाईजान। भाई, जैसे आप भी आपके बोलिए ना। पास, उनके पास भी ठेका नहीं है, आपके पास भी ठेका नहीं है, तो दूसरों के पास भी ठेका नहीं है। आपके अच्छा काफिर सुन, कहने से या ला तल्लकी कहने से जाहिर नहीं हो जाती। आपने ये बार बार बात की है, ये सिफर है। किसी ने फोन तो नहीं किया आपको? भाई आप भी मुझे कहिए, लेकिन मुझे मौका तो दे दीजिए बात करने का। इतने शोर शराबा कर रहे हैं, क्या फायदा शोर शराबा का? कहां चले गए? कर लें, बीच में टाइम मिला आपको, इसका फायदा पीर उठा बात। साहब आप जो बात करें वो सुन रहे हैं, वो मैं कॉल पे अच्छा सुने, अब सुने, या अब तो सुने। इसको शरी मसला कहें या या अगर शरी आप मसला है सुने तो ना, शरीयत से सजा बता दें पहले इसकी ना। पहले पहले मुझे मेरा बात तो पूरा होने देना। इन्होंने पूरी दुनिया को सर पे लिया हुआ टिकटॉक पे, गोया कि ये जो है ठेकेदार है। भाई आपका कोई हिस्सा ही नहीं है इस आप मसले में। ठेकेदार हैं एक तो ये, दूसरी बात, जाहिद मैंने साहब, जब आप ठेकेदार हैं। तुम तो मेरी बात तो पूरी सुनने दे ना गोया कि आप ठेकेदार हैं, मैं नहीं हूं तो। भाई, मेरी बात तो सुने पूरा।
आपको इस बात जितना पे गुस्सा हक क्यों आ रहा आपको है उतना मुझे भी है, मैं ये समझता हूँ, और मैं भाई, सही सट आप तेरी सवाल क्यों कर रहा बात सुने? तू मौलवी की सट तेरी क्यों बात सुने? हर हूँ। ना बात नहीं तेरी नहीं सुने। नहीं यार, ऐसे बात नहीं करे भाई साहब, प्लीज, वो ये किसी यही की बात चाहते। आप हेलो सुनते जा रहे भाईजान, हैं। नहीं, इसको आप वोट भाईजान, मौका देंगे। भाईजान, मैं तो भाईजान, मैं तो आपकी खुदा बात की तहम्मुल वास्ते से सुन प्लीज रहा ना करे हूँ। इस तरह, नहीं, मैं सबकी उनकी बात डिसरिस्पेक्ट नहीं करवाऊंगा यहाँ पे, ये गलत नहीं, बात है। आपकी मैं बात मैं देखे सुन उनसे रहा हूँ। इख्तलाफे राय जरूर रखूंगा, लेकिन उनसे इस तरह की बात नहीं करने दूंगा। अगर आपने करनी है मुझे तो मैं नीचे उतर जाऊंगा, जो कुछ मुझे भी है। कोई परवाह नहीं, मुझे कोई परवाह नहीं। गालियां दोगे अपने आप को बदनाम करोगे। तो आपको कौन कहता है अस्कानी साहब हमें परवाह है आपकी? हाँ आप तो जो फिर मर्जी राय रखें। हाँ बस आज तो तक तुम सुनिए ना। आप लोगों की परवाह ना करते हुए अल्लाह ताला ने बड़े रंग लगाए हैं हमें, इंशाल्लाह और भी लगाएगा। कौन ये सा रंग? बात नहीं मुल्क है। बदल हुआ है, मुल्क बदल एक हुआ है। बुनियाद बना के आपसे सवाल रखा है तो आपने दायरा इस्लाम से खारिज करके ला तलगी का इजहार किया, हालांकि ये गैर मुस्लिमों के साथ भी सबको बीच में लेता है। आपको इतना ही नहीं पता, अब बात अरे ऐसी नहीं, करते ए हैं, में सारे आ आप ये जाते कह हैं देते ना, हैं। ए में हाँ, सारे आते हैं। सारे आते हैं। कोई इसका देखे, मेरी बात सुने जाहिर इसकानी साहब, आप ईरान में रहते हैं, मुझे नहीं पता, मैं अभी भी हुस्ने जन रख रहा हूं आपके लिए कि शायद आपको नहीं पता इस चीज का। आप लोग जो मर्जी कहें, शरीयत के साथ आपका कोई ताल्लुक नहीं है तो कहते रहे, कोई मसला नहीं है। सवाल तो फिर भी आएगा, यह मुआशरती मसला है। आपने कानून बनाया, इंसानियत को निगल रहे हो आप लोग, उसके ऊपर सवाल तो उठेगा, उसके ऊपर तो सवाल तो उठेगा। आप जो मर्जी कर लें, आप हमें रोक नहीं सकते सवाल करने से। आपने जो शरीयत रखी हुई है आपकी अपनी खुद साख्ता, उसको हमें बताएं कि आपकी शरीयत क्या कहती है। यह सवाल आपसे इसलिए पूछा जाता है ताकि हम आपकी शरीयत को समझ लें। तो आप समझाना नहीं चाहते, समझाइए। मैं आपको चाहता हूं कि आप समझाएं। हिम्मत है सुनने की? हिम्मत सियानी है साहब समझाएं। चले भी ठीक है, अगर आज आपने ये चलना, आपको प्लीज जरा पता चले, आप जो ये के हाथ में पहली दफा आए हैं, शायद आपको पता नहीं है। अगर आपने ये तर्ज रखनी है ना, मैं आपको काके नहीं है, छुनने नहीं है, हम लोग कानों में बुर्कियां नहीं डालते। आप ये जो तर्ज इख्तियार करने लगे ना, मैं अभी भी आपको यही कह रहा हूं, मैं चाहता हूं आपके साथ अच्छे माहौल में बात हो। भाई, आपको हिम्मत नहीं है सुनने की? आप अच्छा, मैं समझ हिम्मत नहीं रखूंगा तो आप रखेंगे हिम्मत? बिल्कुल। आप मैं हिम्मत तो देखो रखेंगे? करें बात। मजदार में बैठा हुआ हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ। मजदार में आप बैठे हैं, हम भी आप, हमको बनेरे पे थोड़ी बैठे हैं मजदार की। हाँ, हाँ? हम मजदार बनेरे में पे बैठे हैं। पता नहीं आप कहाँ बैठे हुए हैं। आ जाए, आपको बताता हूँ मैं कहाँ पे बैठा हूँ। आपसे अच्छी जगह पे बैठा हूँ इंशाअल्लाह ताला बफजल खुदा। खुदा का बड़ा फजल है। बताइए, हुक्म कीजिए। हिम्मत है मुद्दे सुनने पे की? आना आपने कि यही टाइम ये दोगे? टाइम दोगे बात मोर करने देन के लिए? हाफ एन आवर हो गया है आपके साथ यही चल रहा है। वो बात ही नहीं करने दे रहे। जी करें अपनी जी, हालत बात ही करे। हाँ, ये ले म्यूट कर। अब म्यूट कीजिए। देखें भाई, सबसे पहले मैंने आपको ये कहा कि आपने जो पूरे टिकटॉक को सर पे लिया, वो क्या वजह है? आपने कहा शातिमियत। मैंने कहा देखें, जो शरई मसला है उसमें आपका कोई तल्लक नहीं, क्योंकि आप मुसलमान नहीं हैं। उसमें आपको हम दखल अंदाजी करने नहीं देंगे। आप शोर शराबा कसम उठाए मैंने आपको जवाब में शातमियत का है। आप कसम उठाए मैंने आपको जवाब में शातमियत का है। जो ये साहब कसम उठाए मैंने आपको जवाब में ये कहा है। मैंने नहीं आपको म्यूट लगाया। राना भाई, अब बात करना चाहते हैं अब करें, ना म्यूट ना लगाओ भाई किसी को भी। आप कसम उठाए कि मैंने तो आपको कहा है कि हम लोग इसका शिकार हो रहे हैं। हमारे पांव में जूता डाल के देखो। आप तो झूठ, मैं नहीं कहना चाहता आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आप भूल गए। बोलो आप भूल गए। इसमें क्या? आप भूल गए नहीं? पीर साहब देखें, कानी साहब, मैं भी उसमें जन रख रहा हूँ आपके गैर लिए। मुसलमों के आप सर काट रहे हैं इस कानून से ना। आप कह रहे हैं तलाक ही कोई नहीं है यार, कैसी बातें कर रहे हैं आप? राना साहब ज्यादा चुस्त है, शायद इनमें बर्दाश्त है। राना साहब आप बात कीजिए, बात करने देंगे? नहीं, वो ज्यादा चूसते हैं तो आप सारे का सारा चूस के आए हैं। जो ये साहब आप में बड़ी बर्दाश्त, आपने सारे का सारा चूसा है। पीर साहब मैं जातियात नहीं जानता ना ही मैं ऐसी गल करना चाहना। आप जो दो बातें कर रहे हैं, आप एक जगह कहते हैं आपका सीरियस से तलक नहीं है, लेकिन इसी
कुत्ती शरीयत जो आप फॉलो करते हैं, इससे हमारे गले कट रहे हैं, इसका ਨਾ कौन जवाब ਕਰੋ देगा? ਨਾ ਭਾਈ, ਹਲੇ इसका ਉਹਨਾਂ कौन ਨੂੰ जवाब ਸਾਬਤ ਤੇ देगा? ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਹੈ ਕਿਹੜੀ, हाँ, इसका जवाब ਇਹਨਾਂ कौन ਨੂੰ देगा? ਸਾਬਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਹੈ ਕਿਹੜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਸਕਾਨੀ ਸਾਹਿਬ। देखें, अब ये जो राना है इसने शरीयत को गाली दी। नहीं, इसने जो आप follow आपकी करते हैं, गड़ी जो हुई आप शरीयत follow- को जो कहा आप है। फॉलो करते हैं गंदी शरीयत अब आप मौलवियों इसको की। भी पकड़ ले, इसको भी बुनियाद बना ले इस्कानी नहीं साहब, बनाना, बना ले इसको मैं भी तो बना बुनियाद। लाऊंगा। और इस पे कह दे कि शातमियत की है राना ने, आपकी तो शातमियत नहीं, हमारी तो इतनी सी बात जो आपके साथ मंसूब करके हम करते हैं वो भी शातमियत है। कर दो, जाओ जाके ब्रांड लगा ले, फिर दे दिया आपको एक और मौजू। राना के जाओ ये राना बातें के लिए करके तो- वहां पे पाकिस्तान में अहमदियों के गले कटवाओ, कटवाओ, बड़ी शरीयत लेके बैठे हो, कटवाओ जाके अहमदियों के गले वहां पे। इसलिए आजकल और चिल्लाओ, शातियत का जो है ना और कोई शातियत टुकड़ा करो। ढूंढना चाह रहा नाम है। चिल्लाएंगे, उसकी वजह ये है, चिल्लाएंगे अस्कानी, चिल्लाएंगे भाई। माफी की चिल्ला चिल्ला के शातमियत करो। शातमियत किसने की है? आपकी शातमियत नहीं होती। चिल्ला आप तो चिल्ला खुद के कह रहे थे आमिर नजीर, जिसका भी मौजू लेके आपने तो खुद कहा वो बड़ा शातम है। कहा नहीं था चिल्लाओ, और आपने? चिल्लाओ, रिकॉर्डिंग चलाऊं आपकी कि आपने कहा है आमिर नजीर शातम है? और चिल्लाओ जोशी, और आपने चिल्लाओ। उम्मे रुबाब साहबा के साथ बैठ के उसको आपने जो कलमात बोले हैं मैं आपको सुनाऊं अस्कानी भाई? अबे चिल्लाओ। तो प्लीज नीचे उतारो, ये एक शराब सेकंड। पी के आता है। नहीं उतारना भाई, बिल्कुल नहीं आदमी उतारना है यार, आप भाई, इसको नहीं क्यों उतारना। वेस्ट करें? जिसको लग रहा है वो मुझे छोड़ दे या मुझे नीचे उतार दे, नहीं उतारना नीचे मैंने, उतार वो दो, खुद जाएंगे, इनको नीचे उतार दो। वो खुद जाएंगे, कोई बात नहीं है। अब खुद जानना आमिर चाहते नजीर हैं आप क्यों शातम नहीं है जानते? अस्कानी साहब? आमिर नजीर शातम है, गुस्ताख है? बताइएगा। आपका तल्लक ही नहीं है शरीयत से, मैंने बताया। आपका आमिर नजीर शातम है, गुस्ताख है, मेरा शरीयत का तो सवाल ही नहीं है। शरी तो सवाल ही नहीं है, ये तो शरी सवाल ही नहीं है, ये तो शरी सवाल ही नहीं है। किसने कहा ये शरी सवाल है? ये शरीय मसला मैंने है, तो कौन आपसे सी अपनी शरीयत? इंफॉर्मेशन के लिए पूछा है कि बताइए भाई, आपकी शरीयत के मुताबिक आपके लिहाज से आपका जो आमिर नजीर है वो शातम और गुस्ताख है? आपका कादियानियत का कोई तल्लक नहीं है शरीयत ओए से। भाई, उमर सी बाप चलियत, को कौन सी जरा चलियत, मैसेज कौन करना सी- दो चार। जो ये भाई कौन सी चलियत की ये बात करें, चिया चलियत, नहीं, वो चलिए। मुसलमान की बात करते हैं, ये जो जिनको कहते हैं खुद्दू मुसलमान, मुसलमान की उनकी चलियत। हाँ बिल्कुल 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 अब बिल्कुल, खुद ये खुद ही मुसलमान की अस्कानी साहब के चलियत, अल्फाज हमारे नहीं है। चलियत, कौन सी जी जी चलियत जी की बात करते हैं? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। मैं देखिए अच्छा। अस्कानी भाई, आप बाबड़ों- सीधा अभी बाबड़ों सवाल की पूछ रहा हूँ, चलिए, या तो अभी इस तरफ सुनो। आ जाए या इस तरफ आ जाए। अभी थोड़ा आपसे सा आपके पास जवाब नहीं है, अगर है तो दे दे भाई, क्या मसला है? शरीयत का कादियानियत से कोई तल्लक नहीं है। खुद ऐसी खुद शरीयत से मुसलमान कोई अच्छा तल्लक नहीं है। एक मिनट आमिर नजीर का शरीयत से ताल्लुक है? आमिर नजीर का शरीयत से ताल्लुक है? तल्लक नहीं है। जो माँ एक मिनट। माँ के साथ ज़ना जायज़ आमिर करती है ना, नजीर का शरीयत से ताल्लुक है? चिल्लाओ कादियानियों, चिल्लाओ। आमिर अस्कानी- नजीर का शरीयत से ताल्लुक है? आसकानी तुम तो वैसे फुद्दू मुसलमान हो। ओ नहीं यार, क्या कर रहे हो सुभान इसको भाई? इसको कहा, इसने खुद कहा, इसने मैं सुभान फुद्दू भाई मुसलमान। ठीक है, लेकिन मैं फुद्दू एक मुसलमान की कौन सी शरीयत बात अल्लाह दा वास्ता दे, मैं हाथ जोड़ना अल्लाह दा वास्ता। यार एक बंदा बोलो सुभान भाई, म्यूट कर दो उसी को। जाहिद अस्कानी भाई मुझे ये बताएं, ये बता दें कि आमिर नजीर जो असूल आपने अभी जाके अवैस भाई की ब्रॉड के ऊपर आपने जो असूल खींचा था, क्या आमिर नजीर उस असूल के तहत आता है या नहीं? आपने उसको गुस्ताख बोला, मुसलमानों के उसको मामलात डिक्लेयर किया, में तुम्हें दखल करने आपके की उस कोई असूल के जरूरत तहत नहीं है। वो आमिर नजीर आता है कि नहीं आता, कि सिर्फ आमिर हक ही आता है, सीकर ही आता है? आमिर हक के जितने भी मुसलमान हैं, तेरा क्या काम है वहां घुसना? हाँ जी, वो मुसलमानों का पूछ रहा हूँ कि तुम में से भी गुस्ताख मोमन पैदा हो रहे हैं ना, कोई मुसलमान हमें पता पूछेगा चले तो तुम्हारा बताऊंगा गुस्ताख ना। मोमन क्या होता है। कोई मुसलमान पूछेगा बताऊंगा, कादियानी पूछेगा बताऊंगा। कादियानी के साथ तुम्हारे मुसलमान ने फिर जाके मनाजरा अम्बलैन नु कीता सी, तो गुस्ताखी के किसने ऊपर किसने मुनाजरा किया? तुम्हारे सीकर ने। तो मैंने उसको जूता अच्छा, मारा, जो ये भाई, एक मिनट एक मिनट यार, मैंने उसको जूता मारा। क्या जूता मारा? गुस्ताखी का हाँ, गुस्ताख, मैंने उसको गुस्ताख कहा- हुआ ना फिर वो सुनो वो गुस्ताख है ना फिर? जोशी सुन लो, सुन तो लो। मैं आपसे तो मैंने- पूछ रहा हूँ, मुझे उतना ही जवाब दीजिए अस्कानी साहेब।
तुम्हारे मतलब का क्यों जवाब दूं? गुस्ताख हुआ ना फिर वो। सुन लो, मैंने सीकर को कस के जूती मारा। मैंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आया? इस बात पे तुमने मुनाजरा किया, वो भी एक मुल्हिद कादियानी से। हाँ तो फिर गुस्ताख मोमिन तो उसने कहा ना मैं गुस्ताख हूं, और एक मोमिन ने सुने उधर उसने अल्फाज ये इस्तेमाल किए थे, हाँ मैं ये गुस्ताखी के जुमरे में आता है, और ये मोमिन ने, इस मोमिन ने माफी मांगी है, तो गुस्ताख मोमिन हुआ ना। मैंने इसलिए उसको झूठा गुस्ताख मोमिन हुआ ना। के साथ शातिमियत में बात करने के आप में ऐसे मोमिन पाए जाते हैं जो गुस्ताख होते हैं। वो सब आपके आमिर हक साहब कहते हैं, आपके आमिर ओए एक गुस्ताख मोमिन नहीं बर्दाश्त होया तुम लोगों को लो, तो आप में ऐसे मोमिन पाए जाते हैं जो गुस्ताख होते हैं। चिल्लाओ, मुझे इससे क्या मैं है? आपसे सवाल कर रहा हूं, और गुस्ताख मोमिनों वाली शरीयत आपकी है, हमारी नहीं है। जवाब दे। ऐसे मोमिन जो गुस्ताख होते हैं, ये शरीयत तुम्हारी है। वैसे जोया भाई कैसे मजे की बात है, ये दावा करते हैं, ये झूठा दावा करते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दावा का, करते हैं, गालियां देते हैं, गालियां देते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इंक्लूड जायद इसकानी, सब ये देते हैं, और कहते हैं कि तुम्हारे से तल्लुक कोई नहीं है। अच्छा नहीं, वो जो बात है ना, मेरी बात सुने, ऐसे अभी बदकार, इसका ऐसे लानती लोग हैं। सुभान भाई अल्लाह, मेरी बात सुने, ऐसे अल्फाज आप उनके जो किए हुए अल्फाज हैं वो क्यों नहीं उनके मुंह पे मारते? आप अपने अल्फाज क्यों लेकर आते हैं? वो कम पढ़ रहे हैं, अंबार लगा हुआ है यहाँ पे उन अल्फाजों का, इनके अल्फाज इनके मुंह पे मारे ना, इनका चिल्लाना देखो, तो अपने अल्फाजा दी की लोड़ पै गई है। चिल्लाना देखो इनको। जो ये भाई गुस्ताख मोहम्मद नु वारी दईए थोड़ी जी। नहीं, मेरा गुस्ताख मोहम्मद साहब ਤੁਹਾਡਾ टाइम सिर्फ मैंने एक बात करनी है। जोया भाई आज दुनिया का मुसलमानों के अमर नजीर गंदतरीन इंसान जिसने उमर अबाब साहिबा, जिसने अपने 400 यूरो के लिए जो जुआ कहलाता शातिम रसूल को अपना हकम बनाया, उसने फैसला किया। अच्छा वो मोमिन गुस्ताख भी देखे, मोमिन जुआ खेलने वाले भी हो गए, और कौन कौन से मोमिन हैं इसका? नाम देखो, सीसीडी पुलिस जी क्या वो मैं कह रहा हूं कि मोमिन ऐसे ऐसे हैं आपकी शरीयत के मुताबिक और आपकी शरीयत के अंदर, कि उसमें मोमिन गुस्ताख भी है, मोमिन झूठ बोलने वाला भी है, मोमिन जुआरी भी है, और कौन कौन से मोमिन? मेरा इस बात का जवाब दो, क्या लेना देना तेरा शरीयत से? मैं इसलिए हूं कि मैं आपकी शरीयत को समझना चाहता हूं। आपने शरीयत कहां से लाई है? तेरा क्या हवाला दे दे, मैं समझना चाहता हूं आपकी शरीयत, मैं आपकी शरीयत समझना चाहता हूं। कादियानियत छोड़ो, आओ समझाते। ओ ऐसे कैसे छोड़ दूं? को दलील के मुताबिक लेकर जाओगे कि मुंह उठा के मैं चला चलूं? मुझे कोई रिश्ता देना है आप लोगों ने? ये दे दो रिश्ता, में आ जाता हूं। हाँ तो फिर भाई ये कोई गलत क्या रसूली बात क्यों कर रहे हैं आप असकानी साहब? तेरा शरीयत से कोई आप दलील से लेकर जाओ ना, ऐसे कैसे मैं आपके साथ चल पड़ूं? मुस्टंडा हूं मैं आपके साथ चल पड़ूंगा? देखिए मैं तुम्हारी तरह बदतमीजी नहीं करूंगा, तू कादियानी तो कर सकता है। मैंने सर मैंने तो आपके साथ दलील से बात की है, सीधी सीधी बात की है। मैंने तो आपके साथ सिर्फ इल्जामी बात की है, मैंने बदतमीजी कोई नहीं की, इल्जामी बात की है आपके साथ। दलील और कादियानी अल्लाह का खौफ। अस्कानी की गालियां मैं लगाता हूँ, एक मिनट नहीं ना करें सुभान भाई, रुक जाए सुभान भाई, ना करें प्लीज, बात को आगे। ये सब कभी सुन भी ले दूसरे की भी, वो बहुत बोल रहा है, सुन भी ले। और सर बोलने दे उनको, उनका काम हम तो चाहते हैं वो बोले, यही बुलवा ही तो रहा हूं मैं उनको। हाँ बुलवा रहे, ये देखो बुलवा। हाँ जी जी, मैं बिल्कुल बुलवा रहा हूँ आपको। शरीयत में हाथ डालने की बोलो इसका। तो आप कौन से वाले मुसलमान हैं असकानी साहब? बताइएगा, मैं आपकी हैसियत आपको बताऊं। बताइएगा कौन से वाले मुसलमान हैं आप मुसलमान है क्या मुसलमान है? जरा बताइएगा। आपका एक वहमी नबी है, उसकी बात मानो। आप मेरी बात सुने, मेरा तो पता है आपको, आपका मुझे नहीं ना पता। आप फुद्दू मुसलमान है, मुसलमान है, मुसलमान है, आप क्या है बताइए जरा मुझे। हाँ, इन तीनों का कलमा भी एक है क्या? तीनों का अलग अलग कलमा है, ये भी बता दें। आप जो भी कहना चाहते हैं कहिए, लेकिन मैं आपको कहूंगा क्यों? मेरा मुंह रोक लेना आपने? मैं आपके मुताबिक चलूंगा,
آپ کوئی بھی فتوا لگائیں گے، اصولی ہو غیر اصولی ہو شرعی ہو غیر شرعی ہو، میں آپ کے نیچے بچھ جاؤں؟ سمجھ کے رکھا آپ نے مجھے؟ کون پوچھے گا آپ کو؟ ہم آپ سے سے بڑے بات کرو۔ پوچھنے والے ہیں، یہ چھوڑو، ہم تو آپ کو پوچھ رہے ہیں، تم سے جو پوچھ رہا ہے اس کا جواب دے دیے، آپ سے تو شریعت پوچھ کے رہے ہیں نا، معاملے میں- آپ کی کے شریعت معاملے کدھر میں گئی ہے؟ جواب میرا دیے کوئی بغیر حصہ آپ نہیں صرف ہے۔ ادھر ادھر آئیں بائی شائی کر رہے ہیں۔ میرا کام ہے صرف بھٹکنا، ادھر ادھر کی باتیں کرنا، شور شرابہ آپ کا کرنا۔ کام ہے نا صحیح راستے پہ لے کر جانا، چلیں شاباش، دلیل دیں اور صحیح راستے پہ لے کر جائیں۔ کون سی دلیل؟ آپ کس کو ابھی بات کی تک یہی دلیل؟ نہیں پتا میں آپ سے کون سی دلیل مانگ رہا ہوں؟ قرآن پاک تو آتا نہیں پانی صاحب پیئے کو۔ ٹھنڈا تھوڑا سا، اسکانی صاحب پانی پیئے ٹھنڈا تھوڑا، پتہ چلے میں آپ سے دلیل کیا مانگ رہا ہوں۔ کیا مانگ خوش رہے ہیں؟ خوش آپ اڑا بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کیوں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی، پتہ نہیں کیا وجہ کیا بنی ہے۔ دلیل؟ پیارے قادیانی کیا دلیل مانگ رہے ہیں؟ آپ کو ابھی تک یہ نہیں پتا چلا میں آپ سے کیا دلیل مانگ رہا ہوں؟ نہیں میرے پیارے قادیانی، مجھے نہیں میں پتا کہہ رہا تھا۔ ہوں میں آپ کی شریعت سمجھنا چاہتا ہوں، شریعت کے مطابق مجھے یہ قادیانی بتائیں کا کہ کیا کام ہے آپ شریعت دیکھا والوں پھر کی؟ آپ پوچھ رہے ہیں، میں بتا رہا ہوں، آپ بیچ میں بول پڑے۔ مجھے پتا ہے آپ نے یہی جواب بتا دینا، رہا ہوں، میں نے تو آپ سے یہ پوچھا ہے کہ آپ کا عامر نذیر گستاخ ہے، شاتم ہے؟ تمہارا کیا کام ہے؟ اپنی شریعت کے مطابق مجھے جواب دے دیں، میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ کس شریعت کے تحت آپ نے اپنے ایک مسلمان بھائی کو آپ نے گستاخ کہا، شاتم کہا، اس کی دلیل دے دیں۔ تمہارا کیا کام ہے؟ اس میں تمہارا کیا کام ہے؟ میں آپ کی شریعت سمجھنا چاہتا ہوں، پرکھوں گا، اس پہ غور و فکر کروں گا، کیوں؟ ایک غیر مسلم کو کیونکہ کیا ضرورت تاکہ ہے؟ آپ جیسی شریعت میں شامل ہو سکوں، آپ کی شریعت میں آ سکوں، مجھے اگر اچھی لگی تو قادیانیت کو چھوڑ دو، آ جاؤ۔ میں آ جاؤں گا۔ میں نے آپ کو پہلے اس کا جواب دے دیا، دوبارہ نہ مجھے کہیں، کیونکہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں دوبارہ سے وہ الفاظ، میں نے وہ الزامی طور پہ بھائی آپ کو وہ بات آپ اس کی ہے، سے اس آپ سے بھی وہی بات دوبارہ میں آپ کو لوٹا رہا ہوں۔ الزامی کہو، غیر اسلامی کہو، استعارے کے رنگ میں کہو، وہابی رنگ میں کہو، جیسے بھی کہو، میں آپ کو وہابی جواب رنگ میں تاکہ آپ تڑپو، تاکہ آپ فرقہ کون تڑپو۔ سا آپ کا؟ فرقہ کون جواب سا نہیں آپ دوں کا؟ گا آپ کو۔ وہابی ہے نا آپ کا؟ اسلام یہ سے کیا دیوبند ہے؟ تعلق تمہارا؟ دیوبند ہے نا اسلام آپ سے کا؟ کیا تعلق ہے؟ کیا تعلق ہے دیوبند ہے تمہارا؟ نا آپ کا؟ تمہارا اسکانی کیا بھائی، تعلق ہے اس سے؟ کیا تعلق ہے؟ دیوبند ہے نا آپ کا فرقہ؟ اس سے کیا تعلق دیوبند ہے ہے نا تمہارا؟ آپ کا؟ آپ کی نظر میں بریلوی، آپ کو بریلوی کچھ نہیں سمجھتے، وہ کہتے کیا حیثیت ہے اس کی، تمہاری کیا بات ہے اس میں؟ تو وہ تمہارا بھی یہی کیا کہتے ہیں کہ تمہاری کیا بات ہے اس میں؟ تعلق؟ ہمارا کام ہے، ہم مسلمان ہیں، تو قادیانی ہے۔ وہ تو آپ کو کافر کہتے ہیں، وہ تو آپ کو کافر کہتے ہیں، مسلمانوں کے وہ معاملات تو میں آپ کو کیا کافر کرنا ہے؟ کہتے ہیں، وہ تو خورشید جی، ایسا کافر کہتے ہیں، میں بتاؤں آپ کو بریلوی آپ کو کیسا کافر کہتے ہیں؟ ہاں بتاؤ بتاؤ پتہ نہیں ہے آپ کو؟ بتاؤ کانوں میں برکیاں ڈالتے ہیں بتاؤ بتاؤ قادیانی جی بتاؤ۔ آپ، پکے کافر نہیں بلکہ پکے کافر ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ لیکن ایک قادیانی یہ کہتے ہیں، وہ اس کا کیا کام ہے؟ اچھا، جو بریلوی نے کہہ دیا آپ کے لیے، اس کا کیا کام تھا پھر آپ وہ کو ہم کہنے دیکھ کا؟ لیں گے آپس آپ میں دیکھ لو کہ دیکھ کیوں لیں آپ گے۔ جماعت احمدیہ کے خلاف اکٹھے کیوں ہو جاتے ہو؟ یہ قادیانی- تمہاری مجبوری ہے کہ 72 فرقے جماعت احمدیہ جو حق کے اوپر ہے، اس کے خلاف تمہاری مجبوری ہے، تم اکٹھے ہوگے، اجماع کیا حق کرو ہے گے۔ تمہارا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ آپ لوگ اجماع کرو گے۔ میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں، بتاؤ، بولو بریلویوں کو کہ وہ کیسے ہیں۔ ایک وہمی انسان کو آپ نے نبی بنا لیا؟ آپ نے کس کس کو بنایا ہے؟ الحمدللہ، شرعی کس نبی، کس کو بنایا آپ نے؟ شرعی نبی۔ اچھا مجھے بتائیں کہ جو بائبل کا یسوع ہے اور قرآن پاک کے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، وہ ایک ہی ہیں؟ شرعی مسئلے میں تمہارا کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ کا کام ہے نہیں تو میرے ساتھ ابھی تو دلیل پہ بات کر رہے تھے، ابھی تو کہہ رہے تھے کہ تیرا نبی میرا نبی، تو تیرا نبی میرا نبی سوال پوچھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں شریعت سے تعلق کوئی نہیں ہے۔ کیسے منانا ہے؟ کیسے منانا ہے بتاؤ، دو دلیل ہے، نئی عیسائیوں کے سامنے ذلیل ہوتے، اپنا بیان دے دو۔ جوشیا جی، وہابی کے تحت میری بات سن لیں، وہابی جو عامر نذیر ہے نا، جو شاتم ہے، سنیں اسکانی صاحب، اسکانی صاحب، جو آپ کا جو وہابی ہے نا، یہ کہتا ہے یہ صرف ہمارا نبی، ہاں یہ بالکل، اس آدمی کا ہے۔ آپ کا جو وہابی ہے نا، آپ کا جو وہابی عامر نذیر ہے، آپ کا جو وہابی عامر نذیر ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ قرآن کا اور بائبل کا یسوع ایک ہے۔ حالانکہ میں نے بائبل نہیں پڑھی، مجھے نہیں پتا کہ بائبل میں کیا لکھا ہے، لیکن اس نے یہ عقیدہ ضرور بنایا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ عیسائیوں کے ساتھ ہمارا صرف ایک ہی اختلاف ہے
کہ وہ بائبل کے یسوع کو معصوم مانتے ہیں صرف اور باقی کسی انبیاء کرام کو نہیں. اور ہمارا اختلاف صرف یہ ہے کہ ہم سارے نبیوں کو معصوم مانتے ہیں انکلوڈنگ بائبل کے یسوع کو. آپ اس پہ اتفاق کرتے ہیں؟ میرا جواب یہ ہے کہ قادیانیت کا اس سے کیا تعلق ہے؟ آپ گالیاں دے دو یسوع کو، پیغمبر نبی کو. میں آپ کو بتاؤں آپ کے فروخی اختلافی بھائیوں نے کتنی گالیاں دی ہیں. میں پلے کروں؟ ایک منٹ میں ابھی پلے کر دیتا ہوں، رک دے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے فروخی اختلافی فرقہ واریت والوں نے کیسی گالیاں دی ہیں. میں ابھی آپ کو سناتا ہوں. ہمارا آپسی معاملہ ہے نا، آپسی معاملہ تو میں بتاتا ہوں نا. ہم بیٹھے ہیں نا آپ کا آپسی معاملہ جو ہے نا سیدھا کرنے میں. ہم لوگ بیٹھے ہیں، ہم بتاتے ہیں آپ کو. میں بتاتا ہوں آپ کو، میرا کام چلانا نہیں ہے، آپ کا کام جواب دینا ہے. آپ کا کام حق سچ کو نہیں میری بات سنیں. کہ آپ ہو قادیانی ملحد، آپ کا اسلام سے میں قادیانی ملحد اور آپ کیا ہو؟ سچے پکے اسلام کا وہ مومن گستاخ. یہ وابڑ ملد ہے. آپ سچے پچے مسلمان یا مسلمان یا خودو مسلمان؟ وہ بڑھیا. ابن تیمیہ نے اس کا کیا کرنا ہے؟ ابن تیمیہ نے جو گستاخیاں کی ہیں اس کا کیا کرنا ہے؟ وہ جو وامی جو تھا ابن تیمیہ، اس کا کیا کرنا ہے؟ اچھا میری بات سنیں، میں ان کو یہ سنا دوں. آپ موجود ہیں؟ میں تو جلال الدین سیوطی کو بھی رگڑ دوں گا، ٹینشن نہیں لینی. بار بار اسکانی صاحب کیوں کہہ رہے ہیں بھائی صاحب؟ کیوں یہ اس کو اتنا بڑھاوا دے رہے ہیں؟ اسلام بھائی ہماری یہی تعلیم ہے. جو بھائی جان جس نے گالی دینی ہے وہ گالی دینا. میں تو صاحب بھی بولوں گا. جو ابن کثیر نے چوڑے ماری ہوئی ہیں اپنی تفاسیر میں. اچھا ہاں جی، وہ یہ ڈیفینڈ کر سکتے ہیں؟ بھائی جان وہ یہ نہیں ڈیفینڈ کر رہے کہ ان کا عقیدہ کیا ہے. میں تو سیدھا سیدھا ایک عقیدہ پوچھ رہا ہوں، عقیدہ نہیں بتا پا رہے. جی میں پلے کروں، آپ موجود ہیں؟ منہ کھول دوں گا. قادیانیوں تمہارا کام نہیں ہے اسلام سے. اور مسلمانوں عقیدے بتاؤ کون سے عقیدے کس شریعت کے تحت رکھے ہیں مسلمان صاحب؟ بھائی جان وہ مسلمان سے یہ سنیں اسلام کے مسائل پہ بحث کر رہے ہیں، وہ بھی قادیانی ملحد. کوئی دو رائے اور وہ بندہ جڑا یسوع مسیح دی توہین کردا در حقیقت وہ عیسی علیہ السلام دی ہی توہین کر رہا ہے. ایدے کوئی دو رائے نہیں ہے. سنتا جا اور شرماتا جا. میں حیران ہوں. الحمدللہ میں نے 7 استدلال پیش کیے تھے، بائبل سے کیے تھے، کسی ایک کا جواب نہیں دیا گیا مقبول. میں نے 7 سے زیادہ یسوع کے گناہ ثابت کیے تھے، جھوٹ بولنا، ماں سے بے ادبی کرنا، شراب کی مجلس میں شراب پینا، اور بائبل سے ثابت کیا تھا کہ وہ تو میں کا شیرہ پینا انہیں روحانی تھا، وہ کاہن تھے. بائبل کہتی ہے جو کاہن ہے وہ میں کا شیرہ تک نہ پی، اور یسوع میں پی. اور وہ بندہ جڑا یسوع مسیح دی توہین کردا در حقیقت وہ عیسی علیہ السلام دی ہی توہین کر رہا ہے. ہاں جی، وہ بندہ جو یسوع کی توہین کرتا ہے وہ دراصل عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کر رہا ہے. اس کے بعد میں نے مولوی صاحب کی وہ جو مناظرہ کر رہے ہیں ان کی ویڈیو چلائی ہے. انہوں نے کیا کون سے الزام لگائے ہیں حضرت بائبل کے یسوع کے اوپر؟ بتائیے گا جی اسکانی صاحب. آپ بول دیں ان کے اوپر لعنت. اگر آپ کو یہ میری بات بری لگی یا کوئی عقیدہ آپ کا کچھ ہے، آپ اپنے فروغی اختلافی ایسے فرقے والے بھائیوں کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ان کے جو عقیدے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے. آپ کوئی حیثیت نہیں ہے اسلام پہ گفتگو کرنے کا، شرعی مسائل میں دخل دینے کا، کیونکہ آپ ایک ملحد قادیانی ہیں. اچھا یہ دیکھیے، پھر یہ اگلی سن لیں، پھر وہ بتا دیں. باقی ہمارے مسائل ہم دیکھ لیں. مہربانی کریں اس کو ایگو ایشو کو چھوڑے. آؤٹ آف دا وے، آؤٹ آف دا کوشچن ایک چیز کو لا کر بیچ میں آپ نے ہماری ایس کے اندر دے دیا صلاۃ و سلام. ٹھیک ہو گیا؟ اس چیز کو آپ نے ہماری ایس کے اندر دے دیا صلاۃ و سلام. ٹھیک ہے، تو نے کیا مار کا مارا بھائی؟ تو تیری اللہ رسول کی محبت یہ ہوتی، تو میرے پہ لعنت بیچ کے مجھ سے دور ہو جاتا. اگر تو سمجھتا تھا یہ گستاخی ہے، میرے منہ سے جملے نکلے وہ غلط تھے.
तू तेरी अल्लाह रसूल की मोहब्बत ये होती तू और वो बंदा जो ये भी सुन ले। ਬਰਾੜ ਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਦੀਦ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਾਈਬਲ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੁਰਾਨ ਚ ਜਿਹੜਾ ਈਸਾ ਇਬਨ ਮਰੀਮ ਨਹੀਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੁਰਾਨ ਚ ਜਿਹੜਾ ਈਸਾ ਇਬਨ ਮਰੀਮ ਨਹੀਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੁਰਾਨ ਚ ਜਿਹੜਾ ਈਸਾ ਇਬਨ ਮਰੀਮ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਇਸ ਵਕਤ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਾਂ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖਾਸ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਸਾਇਆ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਦਿਓਬੰਦੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਗੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰਕਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਜਾਣਦਾ ਜੇ ਕਿ ਮਰਜ਼ਈ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਸਾਇਆ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਦਿਓਬੰਦੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਗੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰਕਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਜਾਣਦਾ ਜੇ ਕਿ ਮਰਜ਼ਈ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨੇ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਦੂਜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ कि कोई मुसलमान हो ही नहीं सकता अगर वो हज़रत ईसा की गुस्ताखी करे थे। वो भाइयों खुलेआम पे करन देने होने थे, उनका आज भाई भी थल्ले आमिर भाई ऐसे खोल के सामने बैठ के एजरी बकवास करते ने सामने बैठ के वो ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਨਾ ਵੀ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਖਾਂ ਚੋਵਾ ਮੁੱਤਰੇ ਬੰਨੇ ਅਸੀਂ ਚੋਵਾ ਮੁੱਤਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਭਾਈ ਕੈਮਰੇ ਖੋਲ ਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਲੌਜਿਕ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ यार। हाँ जी, ये मैं अभी याद ही सुनाई है, बहुत लंबी है। इसकानी साहब इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? पूरी अब ये ना सुनाओ, कह देना पूरी तेरा रात की बात तल्लक है। हाँ तो मैं वही कहूंगा, कादियानियों का क्या तल्लक है क्यों? मुल्हिदों का? इस्लाम से क्या तल्लक है आपका, बताओ। मुल्हिद आप हाँ? आप अल्लाह ताला को वाहिद जानते हैं? आपका क्या तल्लक है शरई आप मसला अल्लाह ताला पूछने को का? वाहिद जानते हैं? मैं आपको ये वैसे इसका क्या तल्लक है भाई, उसका भी तेरा क्या आपको तल्लक है एक मिनट इस्लाम से? एक तो मिनट बड़ा है। यार, एक मिनट, ये एक मुसलमान की ऑडियो और भी सुन ले, ऑडियो ना मुसलमान की। हाँ जी, सुनाइए, इसकानी सुनाइए। साहब आपको शौक है ऑडियो सुनने का, सुने। पूरी रात सुनाइए। जानते हैं? हाँ बैठो तेरे मूसा चुप करके बैठो। तेरे ईसा दे ठीक है कि तेरे मोहम्मद दे मुंह च करा ते तेरे मूसा दे मुंह च करा ते तेरे ईसा दे मुंह च करा। कभी और भी सुनिए इसकानी साहब। तो अरे पूरी रात सुनाइए। अल्लाह रब्बी अस्तागफिरुल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वालेकुम सलाम। एक मिनट एक बंदा एमटी भाइयों, हेलो एमटी भाइयों, इखलाक दिखाएं, हुस्न ये बारी बारी बोलने सारे कदम पड़ गए। बड़ा इखलाक वाला आया हुआ है। व्हाट इज दिस यार, व्हाट इज दिस? अच्छा बात ये है, अब 1 by 1 नहीं हो रही थी, वैसे ये थोड़ा फ्री स्टाइल चल गया साथ में अकबर भाई, कोई ऐसी बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, आप आए हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सैफी साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, बाकी सब दोस्तों को भी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अब मेरी असगानी साहब सैफी भाई, मैं आपको माइक देता हूँ, आप ले लें। सैफी भाई आप ले लें माइक, एक आपका ही है माइक। मैं सिर्फ इतना कह दूं कि असगानी साहब, आपसे मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि आप तदब्बर करते हुए, ठीक है, एक अच्छी तर्ज इख्तियार करते हुए, एक अच्छे मुसलमान होते हुए, एक अच्छे शरीयत के मुताबिक जवाब दे देंगे, लेकिन आपने नहीं दिया, एज यूजुअल एंड एज एक्सपेक्टेड। सो मेरे आपसे सवाल खत्म है। किसी भी भाई ने अब आप आसकानी साहब से बात करनी है तो करें, बहुत शुक्रिया। मेरा एक सवाल है अस्कानी साहब से। शातिम से बात नहीं करता मैं। मेरा सवाल ये है अस्कानी, क्या आप पैदाइशी बेगैरत थे या खत्म नबूवत के मुजाहिद नहीं, ये सुभान भाई यार इतनी बड़ी गाली कह रहा है हमारा। सुभान भाई छोड़ दे, सुभान भाई ये लोगों को फैसला करने देना। सुभान भाई, बात ये है कि आधा मिनट की बात ये है
کہ ان سے جب بھی کوئی سوال پوچھو نا ان کی گستاخی کے بارے میں، ان کی جو انہوں نے بکواسیات کی ہوئی ہیں، لکھی ہوئی ہیں، جو اہل تشیع کہتے ہیں، جو اہل حدیث کہتے ہیں، جو دیوبندی کہتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں، تو آگے سے ان 72 کا یہ جواب آ جاتا ہے، آپ کا کیا تعلق ہے اسلام کے ساتھ؟ آپ نہیں ہم سے کوئی سوال کر سکتے۔ نہیں تو بریلویوں کی نظر میں ان کا کیا تعلق ہے اسلام کے ساتھ؟ مطلب یہ کہ یہ ایسے گستاخ ہیں، یہ جس کو نبی مانتے ہیں، کہتے ہیں وہ نبی ہے، خاتم النبیین ہے، اللہ کو ایک مانتے ہیں، ان کی گستاخیاں کرتے رہتے ہیں۔ ابھی عیسائی نے بتایا دیوبندی کتنی گندی نسل ہے، ابھی عیسائی نے بتایا، عیسائی نے بتایا ہے۔ اور جب ان سے آپ پوچھو گے نا کہ یار یہ گستاخی ہے، یہ دیکھو سناؤ گے ان کو، جیسے آپ ان صاحب کو سنا رہے ہیں۔ اور عامر نذیر نے سہولت کی ہے، بٹھا کے دیوبندی کی نسل کہلوائی ہے وہاں پہ، ان کا جواب صرف ایک ہی ہوتا ہے آگے سے، آپ کا کیا تعلق ہے؟ ہم جو مرضی کریں، ہم الٹا لٹکائیں، ہم سیدھا لٹکائیں، ہم چھڑیے ماریں، ہم جو مرضی گستاخیاں کریں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو جیسی مرضی وہ تکلیف پہنچائے، آپ کا کیا تعلق ہے اس سے؟ بس یہی حالت ہے ان کی۔ بس ان کو صحیح فرما کے گئے ہیں کہ یہ 72 جہنمی ہوئیں گے اور یہ فی النار ہوئیں گے، یہ جہنم آگ میں جل رہے ہوئیں گے۔ ان کی گستاخیاں دیکھ لیں، ان کی بکواس بازیاں دیکھ لیں، ان کی زبانیں دیکھ لیں۔ یہی زاہد اسکانی اپنے دو علماء کو کہہ رہا تھا کہ تم لوگ وہ لفظ آپ نے پتہ ہی ہوگا، سنا ہی ہوگا، کیا کیا کہہ نہیں، اسکانی صاحب نے خود کہا ہے کہ عامر نذیر گستاخ ہے، شاتم ہے، انہوں نے خود کہا ہوا ہے۔ پوچھ لیں، میں نے جھوٹ بولا ہے تو پوچھ لیں، منہ پہ بیٹھے ہیں، پوچھ لیں۔ آپ نے کہا تھا نا اسکانی بھائی، میں نے یہ کہا کہ اسلام اور اہل اسلام کے بارے میں تیرا کوئی تعلق نہیں کہ ان پہ پھر بغیرت غلط بات، یہ یار یہ جھوٹا آدمی ہے۔ نہیں یار، گالیاں کے بغیر کیوں نہیں بات کرتے آپ لوگ یار؟ قادیانی اور گالی نہ دے تو کیا غصہ اتنا غصہ چڑھتا ہے تو اسکانی صاحب کے ساتھ پیار سے بات کریں، اسکانی صاحب کے ساتھ پیار گالی کے بغیر بات کریں۔ زہر پی لو، زہر پی لو۔ اچھا اسکانی بھائی میری بات سنیں، ویسے اصولی بات ہے، آپ ٹھیک ہے ان سے پوچھ لیں گے، جیسے بھی پوچھیں گے، کہیں گے جی ہمارا مسئلہ ہے، ہم آپس میں پوچھ لیں گے، لیکن اصولی طور پہ یہ ہے کہ بریلوی کی نظر میں آپ کی کیا حیثیت ہے ایز اے بھائی؟ مسلمان؟ وہ ہمارا معاملہ ہے، ایک ملحد قادیانی کی کیا ضرورت ہے وہ بات کرنے کا؟ یہ ایک ملحد دیوبندی یا وہابی جو بھی ہو آپ، اس کا بریلوی کی نظر میں کیا اوقات ہے، کیا حیثیت ہے؟ وہ ہمارا اپنا معاملہ ہے، ملحد قادیانی کا وہ آپ پہ اتنا تبرہ بولتا ہے، اتنی لانتیں بولتا ہے، اور آپ کہتے ہیں ہمارا مسئلہ ہے۔ لعنتیں ہم سب آپ پہ بھی تو کرتے ہیں۔ اچھا تو وہ بھی آپ پہ کر لے تو کون سی بڑی؟ اس کا مطلب ہے جتنا اثر ان کا آپ پہ ہوتا ہے اتنا ہی آپ کا پھر ہمارے پہ ہوتا ہے۔ وہ ہمارا یہ اصول جو آپ نے مجھے بتا دیا ہے ابھی، یہ اصول جو بھی آپ نے مجھے بتا دیا اسکانی صاحب، جتنا ان کا آپ پہ اثر ہوتا ہے تو آپ کا بھی پھر ہمارے پہ اتنا ہی اثر ہوتا ہے۔ چکو اپنا بوری بسترا۔ دیکھیں جوشی جی، تو ایک ملحد قادیانی ہے، اسلام کے بارے میں استغفر اللہ ربی، اللہ کی قسم اٹھاؤ میں ملحد قادیانی ہوں، اللہ کی قسم اٹھاؤ، لا الہ پڑھ کے آج یہ کہو کہ میں ملحد قادیانی ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے دعویٰ کرو کہ میں ملحد قادیانی ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ جس کو نبی مانتے ہیں مرزا، اور آپ سب ملحد ہو۔ بس ٹھیک ہے، اللہ اللہ کی طرف ہو گیا نا معاملہ آپ کے اوپر، اللہ کی طرف ہو گیا نا معاملہ آپ کے اوپر۔ اسکانی صاحب بغض میں خدا کو اپنے سامنے مت لا کے کھڑا کرو، ڈرو اس خدا سے، ڈرو اس خدا سے، ڈرو اس خدا سے، ڈرو اس خدا سے۔ سمجھ آئی میری بات؟ اسکانی صاحب کو تو آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ آپ نے طرز اختیار کی ہے، خدا صاحب ساڈی بھی سن لو، میں کہہ رہا تو اسکانی صاحب نے کہ اسی کلمہ پڑھ کے آکھو کہ اسی ملحد، ٹھیک ہے، انہوں نے کلمہ پڑھ کے کہہ دیتا، معاملہ اللہ تے چلا گیا، کھلی بلی۔ میں وہی کہہ رہا اللہ تے چلا گیا، ڈرو خدا سے، بس اللہ خیر صلاح، ڈرو خدا سے، میں تو کچھ نہیں کہہ رہا۔ او بھائیو، یہ لوگ جو ہے نا، یہ لوگ جس اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں نا، یہ مافیا گروپ، یہ اس اسلام کے بانی کو دن رات گالیاں دیتے ہیں، 1,24,000 انبیاء کو گالیاں دیتے ہیں۔ آپ ان کو کہو گے نا کہ کلمہ پڑھ کے کہو کہ یہ گستاخی نہیں ہے، تو یہ کلمہ پڑھ کے کہہ دیں گے ہاں یہ گستاخی نہیں ہے۔ سیال جنگلی ان کا بھائی ہے، مسلمان بھائی ہے ان کا سرکاری، اس نے زواج مطہرات کو گالیاں دی، اس نے نبی پاک کو گالیاں دی، سیکر نے سرے عام گالی دی 1,24,000 پیغمبروں کے اوپر درود جو پڑھا جاتا ہے۔ عامر حق نے سرے عام گالی دی ٹک ٹاک کے اوپر بیٹھ کے۔ اب اس زاہد اسکانی کو آپ ابھی کہو گے نا کہ کلمہ پڑھ کے کہو، تو یہ کلمہ پڑھ کے یہ بھی گستاخی کر دے گا۔
ये सिर्फ इन्होंने एक ड्रामा लगाया हुआ है, एक इमोशनल काम डाला हुआ है इन्होंने कि आप मुल्हद हो, आपका क्या तल्लुक है इस्लाम के साथ, हमारा तल्लुक है, हम अपने नबी को जो मर्जी कहें, उनकी जोजा को जो मर्जी कहें, उनकी अज़वाज के बारे में जो मर्जी अपनी किताबों में लिखें, हम जो मर्जी पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हम जो मर्जी लिखे, वो हमारे नबी हैं, हमारा उनके साथ तल्लुक है, हम उनको गालियां दें, हम उनको जो मर्जी कहें, आप कौन होते हो? ये बस इन्होंने ड्रामा लगाया हुआ है। वो इम्तियाज वहाबी से सवाल किया कि ये जो कानून है ना गुस्ताखी वाला, ये तो इफेक्ट तो सारों को करता है, ये हिंदू को भी करता है, ये क्रिश्चियन को भी करता है, ये हमें भी करता है, तो जो तुम लोगों ने अभी माफी की, माफी कैसे दे दी? कहता सवाल तो आपका बहुत अच्छा है, लेकिन मैं इसका जवाब देना जरूरी नहीं समझता, आपका कोई तल्लुक नहीं है, इसलिए हम सवाल का जवाब नहीं देंगे। हमारी अज़वाज मुतहरात हैं, हमारी उम्मुल मोमिनीन है, हमारे अंबिया हैं, हमारा अल्लाह है, हम जो मर्जी करें, आप कौन होते हो? वो बिशाक बरेलवी कह दे कि जो खुदा है वहाबियों का वो लूती है, पर जब इनसे सवाल पूछोगे वो हमारा खुदा है, हम उसको लूती कहें, जो मर्जी कहें, आप कौन होते हो? जी साहब, कादियानियत आपकी माँ है, कादियानियत का इस्लाम से कोई तल्लुक नहीं, इस पे आप नाराज होते हैं। क्या उस बंदे का कोई तल्लुक नहीं, अल्लाह के रसूल फरमा के गए हैं जिसके शर से उसका भाई जो है वो महफूज ना हो। आपका क्या तल्लुक है? आप लोगों ने कितने लोग कत्ल कर दिए हैं, मुसलमान कितने मारे हैं आपने, बताओ ना जरा मुझे, आपका क्या तल्लुक है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो झूठ बोले वो काफिर है, जो नमाज ना पढ़े वो काफिर है। आपका क्या तल्लुक है? और आपका काम है चिल्लाना। आप गंदी गालियां निकालते हो, अल्लाह के रसूल को गंदी गालियां निकालते हो और कहते हो कि आपका क्या तल्लुक है उसके साथ? दिन रात गालियां निकालते हो अपनी लाइफों पे बैठ के, पड़े हुए हैं, सड़ रहे हैं और आप चिल्ला रहे ठीक है? अगर मानो यीशु को मानो, और जो कहानियां उस बाइबल में लिखी हुई है ना अंबिया के बारे में, हजरत लूत के बारे में कि उन्होंने अपनी बेटियों के साथ ये गलत कारी की, हजरत सुलेमान के बारे में जो लिखी हुई, हजरत डेविड के बारे, दाऊद के बारे में लिखा, हजरत यूसुफ के बारे में कि जुलैखा का आशिक था, वो भी मानो ना फिर कहानी है, वो भी कोई सच्ची कहानी है। आप जैसे मानते क्यों नहीं है? वो तुमसे बड़ा शातिर कौन है? दिन रात गालियां निकालते हो, दिन रात गालियां निकालते हो अल्लाह के रसूल को। तुमने खुद बोला गालियां निकाली है, तुमने नहीं बोला गालियां निकाली? अपनी इस्लाह कर लो और इल्हाद को छोड़ दो। बताओ ना, तुमने गालियां, तुम लोग गालियां नहीं निकालते अल्लाह के रसूल? वही तो कह रहा हूँ आपको, जो सियाल को उतारे उससे गालियां नहीं निकाली। जेलों में इम्तियाज वहाबी ने आमद हक को बिठा के गालियां नहीं निकलवाई, आमर हक ने बिठा के गालियां निकलवाई है या नहीं निकलवाई? आमर क्या हो गया? इनको नीचे उतार दिया बेचारे को। जो लोग कानून के जंजीरों में बंधे हुए हैं, जिन्होंने शातिमियत की और कादियानी इल्हाद का माँ, ये यहाँ बैठ के चिल्ला रहे हैं कि उनको निकालो, ये अजब तमाशा है भाई। सैफी भाई को ऊपर ले ले भाई, मैं नीचे बेशक चला जाता हूँ, लेकिन सैफी भाई को ऊपर ले ले, ना करें इस तरह, कोई नहीं, लेकिन उनसे रिक्वेस्ट कर ले, वो मान लेते हैं बात, ऐसी कोई बात नहीं। अगर आपको लग रहा है कि उनको खामोश होना चाहिए या कोई ऐसी वजह है तो उनसे रिक्वेस्ट कर ले। उनको कहे, मैंने नहीं उतारा चाहिए भाई, उनको कहे पानी, मैंने नहीं उतारा पानी वानी नहीं, वो पानी छानी तो आपने तो कुआं सेट किया हुआ ना अपने पेट के अंदर, ठंडा होके बात करें। वो तो कुआं आपने सेट किया हुआ, आप तो बहुत ठंडे हैं, क्योंकि आपने हर बात का ये जो आप इसलिए ठंडे हैं, आपको तो फूलों के हार आपके मुसलमानों ने डाल देने हैं। जैसे ही आप अपने घर में जाएंगे कहेंगे वाह 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 बड़ा केस लड़के आए हो, आपने सिर्फ उनको हर बात पे कहा तेरा क्या तल्लक, तेरा क्या तल्लक, तेरा क्या तल्लक है, तेरा को तल्लक ही कोई नहीं है शरीयत के साथ, तुम कौन होते हो ये सवाल करने वाले? उनको छोड़ो भाई, वो शाते में उनको क्यों छोड़े? ये तमाशा लगाया हुआ है। जो ये भाई मसला पता है क्या है, वो सारों ने इनको ना अलहदा कर दिया, बस इन्होंने अब उस ग्रुप में शामिल होना, उसके चक्कर में ये सारा तो इनको कहते हैं कि मेरा शरीफ भाई है ना, इनका शरीफ भाई है, नीचे आया सिद्धू जट के नाम की आईडी कहें तो ऊपर ले लेते हैं। नहीं, उसको अल्लाह का वास्ता है, गंद को ऊपर ना लेना प्लीज, आपको वेड़ा दो ना। मैंने तो उसको ब्लॉक किया था, पता नहीं किसने इसको अनब्लॉक कर दिया। अच्छा जोशी जी जोशी नहीं है, चस्कानी साहब जोया ना करे ना, और कह सकते हैं यार, वो प्यार से कह सकते हैं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। नहीं, मैं भी प्यार से चस्कानी कह रहा हूँ। अरे भाई कोई बात नहीं, मुझे वो पढ़ना नहीं आ रहा, जोई है
तो मैं जोशी कह रहा हूँ। तो जोई साहब, पाकिस्तानी होते आप तो आपको लोगों पता होता, जोया सिर्फ आपको दूर से ही पढ़ना आ जाना था। बोले। अच्छा, अब ये है कि जो मुल्हिदीन जो शातिम कानून के जंजीरों में बंधे हुए हैं, आप लोगों को यहाँ पर गैस चढ़ा हुआ और चिल्ला रहे हैं उनको छोड़ो। ये क्या तरीका है बताओ? नहीं, ईसाइयों को छोड़ दो, ना छोड़ो उनको, ईसाइयों को छोड़ दो। वो तुम्हारे कहने पे मुल्हिदीन को छोड़ दिया मसीहियों को जाए? छोड़ दो। भाई, जिसने साल हाँ साल सालों साल अस्कानी भाई सालों साल जेलों में रहने के बाद आज वो बाहर भी आ गई है, तो वो आज भी यही कहती है कि मैं तो सोच भी नहीं सकती गुस्ताखी करने के बारे में। उसके साथ जुल्म किया था आप लोगों ने। अस्कानी साहब ना, अस्कानी साहब मेरे से बात नहीं करते, अस्कानी साहब मुझे शातिम कहते हैं, मेरे से बात नहीं करते। एक सवाल इनसे पूछें कि मेरे ज़हन में कब से घूम रहा है, मैं थोड़ा बिजी था। अस्कानी साहब कह रहे हैं कि ये जी हमारा मामला है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखी किया तो ये हमारा मामला है। मुझे सिर्फ ये बता दें कि ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आए हुए हैं नबी बन के, ये सिर्फ इनके लिए आए हैं? ये जो कहते हैं हमारा कुरान में लिखा हुआ है कि ये खाली मुसलमानों के लिए नबी हैं, ये जो हमारा मामला वो तो पूरी, मेरा ख्याल है कि पूरी कायनात के लिए नहीं रहमत बन के आए, नबी बन के आए। तो ये आप इनसे पूछें कि ये जब हमारा खुदा, हमारा रसूल, हमारी किताब ऐसे कहते हैं, अल्लाह ने रब्बुल आलमीन खुद को बोला, रहमतुल आलमीन उनको बोला, तो ये हमारा जो कहते हैं, तो यहाँ पे आके क्यों ऐसे हमारे साथ मत्थामारी कर रहे हैं? तो हमें इसीलिए कहते हैं इनकी अपनी शरीयत है, वो रहमतुल मुस्लिमीन है, रहमतुल आलमीन तो नहीं है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर में है। जब रहमतुल आलमीन है तो उनके कोई गुस्ताखी करेगा तो एक हिंदू भी सवाल कर सकता है, एक क्रिश्चियन भी कर सकता है, एक यहूदी भी कर सकता है, क्योंकि वो तो पूरी कायनात के लिए रहमत है ना। जब ये कहते हैं ना कि हमारा नबी, तो जब जैसे तुम वैसा तुम्हारा नबी, वो कहते हैं कि क्या लुड्डन साहब जैसे शिया के जाकर ऐसे ना करें ना, इनसे पूछें कि यार नबी हमारा नहीं है, नबी पूरी कायनात के लिए बना कर अल्लाह ने भेजा है और हर बंदा उनकी इस्मत की बात कर सकता है, इनके पास ठेका थोड़ी है। इनसे पूछें जरा। यही पूछ रहे जी हैं। इसकानी साहब जवाब दें। तुम्हारा तल्लक क्या है शरीयत के साथ, देखना होगा। हाँ जी। नहीं, एक मुल्हिद से गुफ्तगू करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मजीद वो इल्हाद करेगा। खाए मेरी बात सुने, मेरी बात सुने अस्कानी साहब, मुल्हिद को शरीयत की तरफ और जो पहले कर रहा है उसको करने दे, क्योंकि वो मुसलमान है। नहीं, वो जो कर रहा है शातिमियत या जो कर रहा है उसे करने दे, क्योंकि वो मुसलमान है। बाकी हम मुल्हिद हैं, सानू इन्होंने 295 भी लानी है, सानू इन्हें सारा कुछ करना है, लेकिन उन्होंने नहीं करना क्योंकि वो इन्होंने नाल दा बंदा है। जो ही सुन ले वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुन लिल मुमिनीन। आप जैसे मोमिनीन के लिए, एक मिनट मोमिनीन के लिए, एक मिनट, कुरान एक सेकंड राणा साहब माजरत। अच्छा, इसमें गुस्ताख मोमिन भी है या खाली मोमिन है? देखिए, गुस्ताखी का जो मसला है वो कादियानी का, उसका गुस्ताख मोमिन है कि नहीं, सिर्फ उतना बताएं, मैंने गुस्ताखी नहीं पूछी। का क्या फायदा? गुस्ताख मोमिन है इसके अंदर आयत में? अच्छा, मोमिन का लफ्ज आया ना, वहां पे मुस्लिम का तो नहीं आया ना। ये कहते हैं हमारे मुसलमानों का मामला है ना। मैंने सवाल टू द पॉइंट इनसे करते जाएं कि अगर वो जो आयत शरीफ पढ़ी है वहां पे आया मोमिनीन, और मोमिनीन किन को कहा गया? जो अल्लाह पे ईमान, अल्लाह के फरिश्तों पे ईमान, किताबों पे ईमान, रसूलों पे ईमान। ठीक है, जो उन पे ईमान रखता है, अल्लाह ने फरमाया इन्नल लज़ीना आमनु वल लज़ीना हादू वन नसारा वस्साबीन मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। ये आयत नहीं इनको आती? यहूदियों को भी खुदा ने कहा है, नसारा को भी कहा है, ईमान वालों को भी कहा है। ईमान वाले कौन है? सबको कहा ना अल्लाह ने, जो ईमान रखते हैं चीज़ों के ऊपर, यहूदी भी, साबी भी, ईसाई भी। अल्लाह ने कहा जो अमल साले करेंगे उनको कोई खौफ नहीं है, वो बख्शे हुए हैं सारे। ठीक है, अब ये मोमिनीन कह रहे हैं यहाँ बैठ करके, इनके सवाल ये है कि ये कहते हैं मुसलमानों का मामला है, मुसलमानों का मामला है। मुझे दिखाइए कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल मुस्लिमीन, ये दिखाएं। वनुज़्ज़िलल कुरान मोमिनीन मुस्लिमीन, वो दिखाएं। मोमिन तो सारी जिसका ईमान है वो मोमिन है। चलें। और इसमें ये बता दे अकबर भाई, ये भी सवाल ले ले कि वो जो नबियों पे ईमान लाना है उसमें बाइबल के यीशु पे ईमान लाया है आपने? ये भी बता दे। हाँ जी, तुम्हारा इस्लाम के साथ ताल्लुक क्या है, शरीयत से ताल्लुक क्या है? अभी आएगा जवाब। जी जोई जी शरीयत के मामलों में हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, आप
जो पूछ रहे हैं उसका जवाब मैं आपको दूंगा। अच्छा, इस बात का हवाला दे दे कुरान पाक से कि कहाँ लिखा है अल्लाह ताला ने कि ऐसे बंदों से ऐसे बात करनी है और ऐसे से ऐसे बात करनी है। ये जो फर्क आपने बताया है कि इसमें बात हो सकती है उसमें नहीं हो सकती, कुरान पाक में कहाँ लिखा है? जो जी सुन ले, हाँ थोड़ा सा सुन ले। हाँ जी मैं सुन रहा हूँ, जी जी। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, हमने आपको मबूस किया, भेजा तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर। अब वो किस तरह से रहमत है, मानोगे उसकी तो रहमत बन जाएगा ना आपके लिए। आपको बता देगा ये ना करो, ये करो, ये हराम है, ये हलाल है, जिंदगी आपने कैसे गुजारनी है, वो चलोगे तो आपके लिए रहमत है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पे रहम का सलूक नहीं किया जिन्होंने उन पे ईमान नहीं लाया था? नहीं इनसे शरत पूछ लें कुरान में कहीं लिखा हुआ इसके लिए आयत में कि जो मानेगा सिर्फ उसके लिए रहमत। यार कितना बड़ा ये बंदा तोहमत लगा रहा है नबी पाक के ऊपर, सुन तो ले, कितना बड़ा बोहतान बांध रहा है जो कुरान। इसीलिए मैंने ये सवाल किया। बिल्कुल जी, वो कहते हैं कि रहमत तब है, ये कहते हैं रहमत तब है अगर मानोगे तो, अगर मानोगे नहीं तो मतलब ज़हमत है मोहम्मद। अली अकबर जिन्हें झूठे कह के फंसाया और रहमत बनेगा ना मिले तो रहमत बनेगा ना, पूछो जरा। जो नहीं मानेगा तो कल वो जहन्नम में जलेगा ना। यार जहन्नम का अल्लाह का काम है भाई। ये आपने जन्नत कब से बांटनी शुरू कर दी इसकानी साहब? जो नहीं मानेगा नबी की बात को वो यार फिर मेरा ब्लड प्रेशर हाई करते हैं। इससे बंदा पूछे जो ये साहब वो आलमीन की बात ऐसी की तैसी क्या कर सकता है तू? गाली देगा, शातियत करेगा। शातम तो आप में भी बहुत, शातम तो आप हैं, हम लोग तो माफी का रखते हैं। आप लोगों ने हमारी तर्ज इख्तियार कर ली है, वो अलग बात। आप कहते हैं शरीयत से ताल्लुक कोई नहीं आपका। जब शातम कहते हो तो मुझे आपको वो बात भूल जाती है जो कहते हैं हमारा मोहम्मद हराम का जना, खंजीर का जना नहीं है, तुम भूल जाते हो बात। लानत है तेरे शक्ल पे बेगैरत, ये भूल जाते हो बात। नहीं अकबर भाई क्या बात की आपने, मुझे तो समझ नहीं आई क्या बात की आपने। जो आमिर भाग नहीं ये बताया है, नहीं यार उतारा क्यों है? एक मिनट यार क्या करते हो की गल की जो ये भाई तानू समझ नहीं आई। उन्हें अली अकबर ने जेड़ा किया वा आमिर हक की गल की है। हाँ जी आमिर हक ने कहा है जनाब, ये आमिर हक की बात की अली अकबर ने। आमिर हक की बात, पूरी बात सुनी नहीं, मैं कह रहा हूँ आमिर हक ने कहा, उसकी बात कर रहा है। वो शातियत नजर नहीं आती इसको। शाहिद अस्कानी साहब एक सेकंड, एक मिनट अकबर भाई एक मिनट। जाहिद अस्कानी साहब एक बात सुने, ये शातियत है। एक मिनट, ये शातियत है। एक मिनट भाई रुक जाओ यार। जाहिद अस्कानी साहब ये शातियत है? ज्यादा किस तरह की बात कर रहे हैं सुनो। ये शातियत है? ज्यादा क्या कह रहे हैं देखो, ये शातियत है? क्या कह रहा है? ये शातियत है? समझाओ तो सही जो साहब समझाओ। शातियत है ये मिर्जा हरामजादा की औलाद क्या कह यार उन्हें समझाओ। आप मेरी बात सुनिए, आप कौन से मौलवी की औलाद हो? कौन से मौलवी की औलाद हो आप? यार तुसी उन्हें समझाओ, ओदी गल समझ नहीं आई। समझा दीजिए जनाब, उन्हें पता हो बच्चा नहीं है, उन्हें पता है। मैं खामोश हो जाओ भाई, बात सुनो, वो इस वजह से नहीं समझ आई, उन्हें समझ नहीं आई। आ गई है सीसीडी, आ गई है सीसीडी, वो इसीलिए शातिम नहीं कह रहा, वो इसीलिए शातिम नहीं कह रहा। नहीं है, बात तो समझ आइए, वो पिछों दी बुरकियां नहीं पांदा, उसको सारा पता है, वो बच्चा नहीं है। जितनी भी बात, इसीलिए वो शातिम नहीं कह रहा। जाहिद अस्कानी खानकी के बच्चे, पहले जो ये सब बात सुनो। मिर्जा की नाजा, ओए चुप। और किसे चूड़े दे बच्चे, अच्छा नहीं, अच्छा ना करो, ना करो यार। वो फिर वो हमारे काबरीन पे ही बोलेंगे और क्या करेंगे, इससे ज्यादा और वो क्या कर सकते हैं। ना करो बात। ये अस्कानी साहब आप ऊपर ले करके गया, आपने सुनी नहीं है? हाँ जी सुन लिया। वो मुखालिफीन का यही काम है उस्ताद जी। हाँ जी बिल्कुल, कुछ नहीं है, कोई नहीं आसमान थल्ले। हम औलाद है ना मिर्जा कादियानी साहब के? नहीं है, हम रूहानी औलाद नहीं है तो क्या हो गया? आप रूहानी औलाद नहीं हो? मैं भी उससे पूछा है कि तू केड़ी मौलवी दी औलाद है, भी दस दे। इन्नी दी गल है, की हो गया?
अस्कानी साहब को ले ऊपर और उनसे जरा एक एक बंदा आराम से बात करो यार, ना करो। ये गालियां मुझे दोगे मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन नबी के कोई नहीं दे रहे यार, अस्कानी साहब कोई नहीं दे रहे, हम आपको ये बता रहे थे। मैं बता रहा हूँ अकबर भाई, एक सेकेंड मेरी बात, अस्कानी भाई तो मिर्जा के गाल में डंडा दूंगा। ठीक है, अच्छा चले ठीक है, आपकी शरीयत में ये होगा इस तरह का, ये डंडा डुंडा आप अपनी शरीयत हमें ना बताएं, मुझे ये बताएं कि ये जो बात की है अली अकबर ने, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आमिर हक की बात बताई है आपको कि वो ये बकवास करता है, आप ये बताएं कि इसको आप किस तरह लेते हैं। देखें हराम, म्यूट ना करो ना भाई, नहीं म्यूट गलती से हो गया इसकानी भाई, करे बात। मैंने कहा था कि हरामज़दगी बर्दाश्त नहीं होगी, बाकी कुछ भी कहो, मैं आराम से बात कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ जी, अब आपको हवाला दे के बात की जाए या आप हमारी बात पे इत्तेफाक करते हैं कि ये आमिर हक ने बकवास की हुई है? अरे भाई मैंने ये आपको बारहा बताया कि मिर्जायत इलाहाद की माँ है। अच्छा, मैं आपसे आमिर हक की बात कर रहे हैं तो आप मर्जाइयत पे आ रहे हैं क्योंकि आपने इसको बुनियाद बना के अब भागना है पतली गली से। जोशी जी, क्या नाम है, आमिर हक का तुम्हारा मसला है नहीं, क्योंकि तुम और ठंडा धनिया पिया हुआ है, ऐसे मोमन हो आप, थोड़ी ईमान की गैरत भी दिखाओ ना, खाली मिर्जा साहब पे भोंकते हो, उस पे भी बात कर लो, जिसकी बात आपको बताई जा रही है उस पे भी बात कर लो। उधर तो आपका इत्तेहाद आ जाता है, वहां पे तकैया करते हो, वैसे तो तुम शिया नहीं हो लेकिन उन जैसा तरस जरूर अपनाते हो, तकैया किस बात का कर रहे हो? भाई जहाँ उसको आमिर हक को माफी मिली थी ना, इसको उठा के नीचे फेंका था, ये वहाँ ऊपर जाना चाहता है। पता है मुझे ये उस चक्कर में कर रहा है बस। जी बिल्कुल, मुझे भी वो उनके इत्तेहाद में वापस जाना चाहते हैं, इसलिए उनका केस लड़ रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही, ये चाह रहे हैं कि मुझे अपनी गोदी में बिठाएं। इसमें आप लोगों को क्या तकलीफ है? आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि दिन क्या है और रात क्या है, हमें कोई तकलीफ नहीं, हम सिर्फ आपका रिपोर्ट कर रहे हैं कि आपका दिन क्या है और रात क्या है। नहीं, आपको इसमें तकलीफ क्या है ये बताइए। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये जो आमिर हक की बात की है अली अकबर ने, वो क्या है? बात मुसलमानों की है, मुल्हिदों को कोई काम नहीं। अच्छा, मुसलमान शातमियत करे तो कोई नहीं, ईसाई या अहमदी करे तो उसको टांग दो, और हमने देखा ये है आपकी शरीयत। हल भी किया, आपकी शरीयत ये है कि मसीही करे और अहमदी करे तो टांग दो, तुम्हारा अपना भाई करे तो हमारे घर का मसला है, ये मसला मुसलमानों का ये शरीयत है आपकी। इसी वजह से आप लोगों में से मुल्हद पैदा हो रहे हैं, और सबसे ज्यादा ईरान से पैदा हो रहे हैं। कितने ईरानियों को मैं जानता हूं जिन्होंने इस्लाम छोड़ दिया, मुल्हद हो गए हैं, और पाकिस्तान से भी हो रहे हैं सर, ये बीच ब्राकेट चला रहे हैं ना, सबसे ज्यादा ईरान से हो रहे हैं और पाकिस्तान से हो रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। हाँ जी, और ये शरीयत अपनी दिखाओगे तो मुल्हद ही होना उन्होंने। हाँ, जो कहते हैं मन सब्बा नबियन फक्तलू, मन सब्बा नबियन फक्तलू। आपको आपसे पूछो जी, ईसाई करे शरीयत से क्या ताल्लुक है उनका, उठाओ काटो सर तन से जुदा अपना भाई ऐसे मामले में आप कहते हो नाक पे मक्खी बैठे नाक काट दो, जब तुम्हारी अपनी मक्खी जाके किसी नाक पे बैठती है तो वहां पे पंखा जलने लग जाते हो, ये शरीयत है आपकी। हाँ, मुझे हदीस बताओ ये किधर है, मुझे हदीस बताओ ये मन सब्बा नबियन फक्तलू किधर है, बताओ ये हदीस। मुल्हद से कोई गुफ्तगू नहीं, से ये आप जा सकते हैं, मेहरबानी अच्छा करें। मैं एक बात बताऊं, आज आपने अपने आप को साबित किया कि आप सबसे बड़े मुल्हिद हो, पता है आपको अस्कानी साहब, क्योंकि अल्लाह और रसूल का ये ईमान और दीन है ही नहीं, ये शरीयत ही नहीं है। जो तुम्हारी 2 टके की मजबूरियों के पीछे तुम लोग उसको दान कर देते हो, ऐसा इस्लाम कभी ना था ना कभी है। 2 टके का ईमान है आप लोगों का, 2 टके का जो झूठी शानो शौकत के पीछे बिक जाता है। अस्कानी साहब आई एम सॉरी, माजरत के साथ, झूठी शानो शौकत के पीछे 2 टके में बिकने वाला आपका ईमान है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है आपका। मुल्हिद लोगों को बोलते हो, आप क्या हो, आपने अल्लाह पे क्या ईमान लाया है? आप तकवा कौन सा इख्तियार करते हो? ये तकवा इख्तियार करते हो, ये तकवा इख्तियार करते हो कि अपना करे तो हमारे घर का मसला, बाहर का करो तो उनका सर तन से जुदा। तुम्हारे नसीब में इनका असल में मामलात ऐसे हैं, इनके मामलात ऐसे हैं कि अगर कोई ईसाई औरत इनकी बात ना माने, मेरी गल सुन लो सर, रख ले, अगर कोई ईसाई औरत इन्हां दी गल ना मने ते इन्हां दा काम नहीं है कि सिर पड़ के उत्ते ला दो ते ओ जिस तरह बेचारी फसी सी कर लो। अस्कानी के हाथों मुरब्बी फंस गए सारे।
आप मौलवी साहब बात सुने, अनम्यूट करें मौलवी साहब। मुरब्बी को तो आपको पता ही नहीं है। मौलवी, आप मौलवियों के मुंह पे क्यों कालख मल रहे हो जायद अस्कानी साहब? मौलवियों के नाम पे कदगन क्यों लगा रहे हो आप? इस तरह की शरीयत पेश करके, इस तरह की शरीयत पेश करके मौलवियों के मुंह पे कालख क्यों मल रहे हैं आप? आपका मौलवियों के साथ लेना देना ही नहीं है अस्कानी साहब। आप मौलवियों की बात करें, वो मौलवियों की बात करें जो मस्जिदों में बैठे बच्चों के साथ गलत काम ऐसी कर रहे हैं। शरीयत पेश करके मौलवियों के मुंह पे कालख क्यों मल रहे हैं आप अस्कानी साहब? तमाम मुरब्बियान जूते खा रहे हैं एक हाँ, तो सारे मौलवी जूते खा रहे हैं, तो आप सारे कौन सा मौलवी जूते नहीं खा रहा? मैं बताऊँ आपको, कौन सा मौलवी आपका जूते नहीं खाता? एक मौलवी बताओ जो जूते नहीं खाता। अस्कानी साहब, आपका एक मौलवी बताओ जो जूते नहीं खाता। आपका कौन सा मौलवी है जो जूते नहीं खाता? अल्हम्दुलिल्लाह एक आस्कानी आराम से बैठा हुआ है और तमाम आपका कौन सा मौलवी है जो जूते नहीं खाता? अस्कानी साहब नाम बताओ। तो आप खड़े नहीं हो सकते। कौन सा मौलवी है जो जूते नहीं खाता? एक मौलवी का नाम बताओ। घरों से बेघर हो अगर गए हो। दूसरा फिरका उस पे लानतान ना करे, उसके बच्चों को हराम का बच्चा साबित ना करे, तो फिर कौन सा मौलवी आपका जो लानतान नहीं कराता और अपना मुंह काला नहीं कराता? तुम्हारे ब्रोड पे आया हुआ है, आराम से बात कर रहा है और जूते खा रहा है सबसे। हाँ, जी धनिया पिया हुआ है ना, थोड़ी ईमान की गैरत भी होनी चाहिए ना। अस्कानी साहब आप आए, आप भाई मेरी बात सुनो अस्कानी साहब। मुझे अब तरस आ रहा है क्योंकि आप अकेले आए हैं, हम सारे बात करें, गलत बात है, हम नहीं करते आपसे बात। चले ठीक है, डन हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं करते आपसे बात जनाब, सबको नहीं करते। सबको मुझे तरस आ गया आप पे, तरस आ गया आप पे, सबको हक मिलेगा। तरस आ गया आप पे, शातिम क्योंकि आप शातमियत करोगे। को भी अब जोशिया वक्त के इमाम उम्मती नबी की शातमियत करोगे। इससे बड़ा वेपन तुम्हारे पास और है क्या? पूरे टिकटॉक के इससे बड़ा वेपन हो रहा है क्या? शातमियत करोगे ना। ऐसा गुस्ताख मोमिन जो सिर्फ शातमियत करना जानता है, शातमियत ही करोगे और क्या करोगे? ये बताओ जो जेलों में मुल्हिदीन बंद हैं, इनको क्यों नहीं छोड़ते? क्या औकात है तेरी? मुल्हिदों को छोड़े। कौन से मुल्हिदों को? आप मुसलमान हो? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका तो खुदा हो रहा है, बरेलवियों का खुदा हो रहा है। ये तो आप कौन से वाले मुसलमान हो भाई? आप कौन से खुदा को मानने वाले हो? उसमें जो बरेलवियों ने बताया आप किस खुदा को मानते हो, वो खुदा है आपका या कौन सा खुदा है आपका? आप मुल्हिद नहीं हो, उन पे डंडा बरेलवियों के मुताबिक आप मुल्हिद नहीं हो। आपकी चीखें यहाँ निकल रही हैं। बरेलवियों के मुताबिक आप मुल्हिद नहीं हो। चीखें तो निकलेंगी जब आप तकैया से काम लोगे, मुनाफकत से काम लोगे। बरेलवियों के मुताबिक आप मुल्हिद नहीं हो, दायरा इस्लाम से खारिज नहीं हो, औलादे हराम की नहीं पैदा हो रही हैं आपकी। दोषी बरेलवियों के मुताबिक